Okay, streaming also started. Okay, good evening, everyone. Today is 18th September, and thank you everyone again for coming today and being with us. Today's session will be again a very interactive session from our two great presenters. One is Narsimha Reddy sir and other one is Bhupendra Srinivasji. And Narsimha Reddy sir is again working with a top IT company. Technically, he is very strong, and he will be giving us more details today on how they will be actually well doing lots of presentations today. And Bhupendra ji also will be taking in Hindi, and he also knows Telugu, so he'll be also supporting Narsimha sir on the same. And at the end of the session, we will be taking the question and answer sessions. But before starting the session, I would like to take a small welcome video to all, which is made by one of our panel member, Veer Sagarji. So I would like to share that small video. It is only a 1 minute video. I'll be just sharing it in a moment. Please bear with me. Thank you, Veer Sagarji, for making this wonderful video with us. I hope I'm audible to everyone. Yes, Pooja, we are good. Okay. Okay. Actually, I'm not able to stop the screen share. Just give me 2 minutes. I'm so sorry. Yeah, please take care. भूपेंद्र जी, आप हेल्प कर सकते हो क्या? स्क्रीन स्टॉप नहीं हो रही है शेयर में. मैम सेंटर में ऑप्शन रहता है स्क्रीन स्टॉप करने का. हुआ मैम? नहीं हो रहा है सर. सो सॉरी. जगदीश सर ने मैसेज किया है शायद. ओके, हो गए. वो हैंग हो गए थे सर, एक्चुअली हो गए. या Okay, thank you, sir, and sorry everyone for the disturbance in between. This small presentation, I hope everyone saw the small video that was created. Did everyone see that with the sound? Yes, yeah. No, we didn't get the audio actually. Okay. I've seen the video. Okay. That's fine. Okay. Do you want me to take through once again? Proceed. Yes, ma'am. Yeah, better.
because I know he has taken lots of effort to do this. Yes, yes, that's why. That's why we have to. Yes. Please let me know if the sound is not available. It's audible. It's audible. It's audible, right? Okay, I'll be Yes, yes. Right. starting again. Yeah. Sound is not available. Okay. So thank you, V. Sagar ji, because Thank you. Thank you. this is his try and he has started making it for us. So thank you so much. It has come out so beautiful. वीर सागर जी आपको सच्ची में धन्यवाद है बिकॉज आपने पता है बहुत मुश्किल से आपने अभी अभी स्टार्ट किया है और कोशिश कर रहे हो बहुत अच्छे से आपने बनाया है ये वीडियो हमारे लिए सो थैंक यू सो मच संपत जी आपका Thank you, हैंड ma'am. रेज है प्लीज Thank you, madam. Thank you. यस संपत जी थैंक यू पूजा जी। सॉरी, मैं हैंड रेज इसलिए किया था, थोड़ा सा 2 मिनट की अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बोलना चाहूंगा, उसके बाद में हम कंडक्ट कर रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। तो सभी ऑन पेशेंट नमस्कार। प्लीज आप पहले तो सभी अपने आप को म्यूट कर ले, और भूपेंद्र जी अगर आप हैं तो अगर कोई म्यूट नहीं करते तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब करते हुए। आप लोगों को बार बार आप ये बोला जाता है कि आप अपने आपको म्यूट रखे, प्लीज डिस्टरबेंस होता है। तो जो आपके बीच में यहाँ पे हमारे बीच बहुत ही बड़े टेक्नीशियन कह सकते हो, आपको बहुत कुछ बड़ा नॉलेज देने वाले हैं, तो उसको सुनना है आपको, ना कि आप अपने आप को बार बार अनम्यूट करके डिस्टरबेंस करना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आज ये फटाके क्यों फूटे आप समझ सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी 6 बजे हमारे आज एक वेबिनार हुआ था, एस मोपरा जी आए थे, डीलन सर थे, और डॉक्टर किन्नौर साहब थे, डॉक्टर बिल विलियम थे, हमारे एलसी मेंबर नीरज दलवी सर थे, और हमारी ग्रेट लीडर पूजा मैडम थी। तो पहले तो मैं पूजा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक्स टू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर गुस्मिंदर डीलन सर एंड ऑल्सो एस मोपरा जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये फटाके इसलिए हैं कि आपने आज देखा होगा हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी ने जबरदस्त अनाउंसमेंट किया था। अनाउंसमेंट बोले तो उन्होंने ये बोला है कि कमिंग डेज में आपको बहुत बड़ी न्यूज, इससे भी बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है। मतलब आप समझ सकते हो कि क्या न्यूज मिलने वाली है और क्या होने जा रहा है। ओके। और दूसरा, मैं आज सबसे पहले इस मंच को स्टार्ट करने से पहले हमारे बीच में पूजा मैम है, मैं चाहूंगा कि वो आए और आज हमारे एस मोपरा जी ने क्या बोला है, और हम सब पूरी टीम वाले एक्साइटेड हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं फिर से देना चाहता हूँ गुस्मिंदर डीलर सर एंड ऑल्सो हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी का, जिन्होंने आपको पैनल में लिया और एस मोपरा जी से बात की। और मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट बोले और अपनी शेयरिंग दे, उसके बाद हम आज का वेबिनार कंडक्ट करते हैं। और टू पूजा मैम, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सब सपोर्ट की वजह से होते हैं सर। यस, सर से ऐसे बात करने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत लाइक हैपनिंग मोमेंट था। सो आज के दिन फिर से मेरा हिस्ट्री में एक वन मोर डे है। सो यस, थैंक यू टू ऐश सर, बिकॉज कभी भी बात करने का टाइम कभी ये नहीं करते हैं एंड इग्नोर नहीं करते स्पेशली। एंड उधर पैनल में सब लोग थे, दिलोन सर थे, कौशिक पांडे जी थे, और किन्नौर शाह थे, डॉक्टर बिल विलियम्स थे, जिनके शो था आज एक्चुअली टॉप डॉक्टर्स का, नेश डॉक्टर्स का। और उसके साथ साथ उधर आगे जब मीटिंग स्टार्ट होके कंटिन्यू हुआ, उसके बाद इवन मार्टी सर ज्वाइन किए, और उसके बाद रेड रेडफन सर ज्वाइन किए, जूली मैम भी ज्वाइन किए, और उसके बीच में मुझे भी मौका मिला 2 मिनट्स बात करने का। हाँ, अपडेट्स के बारे में आऊँ तो एटलीस्ट वो अपडेट्स वन आवर से ऊपर लेंगे, बिकॉज बहुत लेंथी अपडेट्स है, बट बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है ऑन पैसिव कैसे वर्क होगा, एकेडमी कैसे वर्क होगा, और ओब्लेस कैसे वर्क होगा। सो प्लीज किसी ने वो वेबिनार मिस किया है तो प्लीज जरूर जाके देखिए। और इसमें एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जरूर इन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के साथ, बिकॉज इधर आज तेलुगु और हिंदी सेशन है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी वो प्रेजेंटर्स को। डेफिनेटली एंड ऑफ द सेशन कुछ क्वेश्चंस है या टाइम बचेंगे तो कुछ पॉइंट्स मैं जरूर हाईलाइट करूंगी। एंड थैंक यू संपत जी एप्रिसिएशन के लिए, एंड थैंक यू एंटायर टीम, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होता, आप लोग के बिना नहीं होता। तो बिकॉज आप एक सपोर्ट और पुश बोलते ना हर जगह से मिलती है, तब जाके नॉन होते हैं या हमें कुछ करने का मन होता है। सो ये सब होती है इधर जितना भी पार्टिसिपेंट्स है और इधर जितना भी पैनल में मेंबर्स है, बिकॉज वो बैक एंड सपोर्ट पैनल एंटायर पैनल देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड वी विल कंटिन्यू द सेशन। I would like to invite Narasimha Reddy sir. Please, please come and like give us a presentation, sir. Thank you, Pooja, for giving such a great opportunity. Thank you, Sampath-ji. So let me introduce myself first. Myself, Narasimha Reddy. నా పేరు నరసింహ రెడ్డి అండి. నేను వన్ ఆఫ్ ద ఎంఎన్సీలో వర్క్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ 10 years నుంచి. నా ఈ 10 years కెరియర్ లో ఆల్మోస్ట్ 3 companies నేను చేంజ్ అయ్యాను. ఐ వర్క్ డన్ లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్, చాలా టూల్స్ కూడా మేము లాంచ్ చేసాము. సో కరెంట్లీ మాకు కూడా సో మెనీ డెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఆఫీస్ లో. మేము మిడ్ నైట్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆల్మోస్ట్ 12-1 o'clock అట్లా అవుతుంది. సో నాకు బేసిక్ గా ఈ ఐటీ టూల్స్ అన్నిటి మీద కూడా మంచి అవగాహన. ఐ హావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దీస్ టూల్స్ బికాస్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. Today, actually, I have taken the topic is, internet tools usage in our daily life. Actually, our life starts with the internet and the day ends with the internet. And our quality time spends maximum time within internet only. So, మనం పొద్దున్నే లేవగానే మన డే వాట్సాప్ తో స్టార్ట్ అయితే లేదా ఫేస్బుక్ తో స్టార్ట్ అయితే, సేమ్ మన డే ఎండ్ అయ్యేది కూడా వాట్సాప్ తోనే ఫేస్బుక్ తోనే ఎండ్ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది, 2012, 13, 14 నుంచి కూడా ఈ ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ అనేది థ్యాంక్ గాడ్ మిస్టర్ జియో వల్ల ఇది పాసిబిలిటీ అయింది. సో మనం అంబానీకి ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ అంబానీ, బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ ఇంత రెవల్యూషన్ ఇండియాలో వచ్చింది. సో బేసిక్ గా యాక్చువల్ గా మనం ఇంటర్నెట్ లేనప్పుడు అందరూ కూడా బిఫోర్ ఇంటర్నెట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ హౌ యు గైస్ విల్ సీ న్యూస్ పేపర్స్ లో మనం మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ మనకి రిజల్ట్స్ వస్తే ఈవినింగ్ కల్లా ఒక న్యూస్ పేపర్ వచ్చేది. ఆ న్యూస్ పేపర్ లో మనం న్యూస్ చూసి మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ని వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, వీ విల్ సీ ద రిజల్ట్, మనం పాస్ అయ్యామా లేదా, వెదర్ వీ పాస్డ్ ఆర్ నాట్. సో బట్ ఈ రోజు ఒక 10 years బ్యాక్ ఏమైంది, సో ఒక 10 rupees ఇచ్చి ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళేవాళ్ళం మనం మన రిజల్ట్స్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడానికి. బట్ టుడే దట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ నాట్ దే. ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్క పర్సన్ కి తన చేతిలో ఒక మొబైల్ ఉంటుంది. ఈవెన్ 4 years కిడ్ దగ్గర నుంచి 80 years, 90 years, 100 years, ఆ ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా సరే మొబైల్స్ వాడుతున్నారు. సో
ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది డే బై డే ఎంత యూసేజ్ పెరుగుతుందో సో దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇంతకు ముందు మనం మూవీస్ సిడీస్ లో చూసేవాళ్ళం, బట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ, ఐ మీన్ మనం ఇప్పుడు మూవీస్ అన్ని కూడా ఓటీటీలో చూస్తున్నాం లేదా ఇంటర్నెట్ లో చూస్తున్నాం. ఇంతకు ముందు న్యూస్ కోసం మనం రేడియోస్ లో వినేవాళ్ళం, బట్ ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఎం లో వింటున్నాము లేదా ఈవెన్ వెబ్సైట్స్ లో కూడా ఇలా వింటున్నాము. బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ రిజర్వేషన్స్ కానీ ఇంటర్నెట్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాల్సింది. ఇలా ఏదైనా సరే మొబైల్లో మనం చేసే ప్రతి పనికి కూడా ఇంటర్నెట్ అనేది కంపల్సరీ కావాల్సి వస్తుంది. ఆల్ దీస్ యాక్చువల్లీ ఈ డేటా మొత్తం కూడా మనం ఏదన్నా పూజా మేడం కి లేదా ఇప్పుడు పూజా మేడం రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఈ రికార్డింగ్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సమ్వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్. ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే మన డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయింది. ఈ డేటాబేస్ లో ఉన్నదాన్ని ఎలా పంపిస్తాము? దీన్ని సర్వర్ లోకి పంపిస్తాం. సర్వర్ లోకి పంపించిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇది యూట్యూబ్ లోకి పంపిన తర్వాత యూట్యూబ్ లో ఒక సర్వర్ ఉంటది మనకి సంబంధించి. సో అక్కడి నుంచి కూడా మనం అక్రాస్ ద గ్లోబ్, ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ఈ ఆల్ దీస్ డేటా వేర్ స్టోర్స్ ఇన్ సర్వర్స్. ఈ సర్వర్స్ ని ఎవరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అని అంటే దానికి సపరేట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు అది మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బేసిక్ గా ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి ఈ వెబ్సైట్ అనేది మనకి ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ onpassive.com అనే వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తాం. దానికి ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే యూజువల్ గా ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ని onpassive అనేది లేదా జేపీ మోర్గన్ అనేది లేదా టీసీఎస్ అనే వాళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ అనేది కొనుక్కుంటారు. దానికి ఒక డొమైన్ ఇస్తారు, దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తారు. సో ఐపీ అడ్రస్ అనేది యూనిక్ గా ఉంటది. సో హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా టు ద సర్వర్స్, అదొక పెద్ద సబ్జెక్ట్ యాక్చువల్గా. సో బై యూజింగ్ ద ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న డేటాని మనం సర్వర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. సింపుల్, మన దగ్గర మన ఫోన్ లో మొబైల్లో ఉన్న ఫొటోస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం? మనం గూగుల్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. గూగుల్ ఫొటోస్, గూగుల్ వీడియోస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇది ఎలా వెళ్తుంది అంటే బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ వెళ్తుంది, ఇంటర్నెట్ లేకుండా వెళ్ళదు. సో బై యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ లో ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఈజీగా కూడా మనకి ఫ్రంట్ ఎండే కనిపిస్తుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఇదంతా ఇంత కష్టమైన పని చాలా సులువుగా మనకు అవుతుంది అనేది. సో ఎంతో మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, డేటా ఇంజనీర్స్, డేటా సైంటిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంటారు బేసిక్ గా. సో యాజ్ యూజువల్ లాస్ట్ టైం నేను చెప్పినట్టు డేటా అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదన్నా వస్తే బేసిక్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓనెట్టే తీసుకోవాలి, లేకపోతే లెటెస్ట్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఓమెయిల్ అనే ప్రాజెక్టు యాష్కి వచ్చినప్పుడు యాష్ దాన్ని ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు అని అంటే మనకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఏదన్నా డే 1 నుంచి డే ఎండ్ వరకు ఎండ్ అవ్వాలంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇలా అనుకుంటే అలా రాదు కదా. సో అవి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అని, ఆర్ఏ మోడల్ అని, స్పైటల్ మోడల్ అని, వి మోడల్ అని, ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అని, అజైల్ మోడల్ అని, ఇంటరాక్టివ్ మోడల్ అని. అంటే ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యాష్ తర్వాత ఇట్లా మా టీం ఇట్లా కూర్చొని మేము వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏ మోడల్ అయితే ఈజీగా వస్తుంది. ఒకప్పుడు ఓల్డ్ ఎలా ఉండేది అని అంటే పాతకాలంలో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ చేసేవాళ్ళం. ఫస్ట్ ఓనెట్ కావాలి, లేకపోతే ఓ కనెక్ట్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఫస్ట్ జూమ్ ని తీసుకుంటారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జూమ్ అండ్ ఓ కనెక్ట్? ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద జూమ్ అండ్ ద ఓ కనెక్ట్ ఈస్ మన దగ్గర కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అవి ఎలా అంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ తీసుకుంటాము, తర్వాత సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తాము, ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేస్తాము, మాడ్యూల్ డిజైన్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా హై ఎండ్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. హై ఎండ్ లో జరిగిన తర్వాత యాక్చువల్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అప్పుడు కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే వాళ్ళు చేసేదాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, యాక్సెప్ట్ టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది, ఫైనల్ గా డిప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. ఇదంతా టూల్ మార్కెట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అంతటితో వర్క్ అవ్వదు. సో టూల్లో ఏదన్నా సర్వర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 days బ్యాక్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ హ్యాపెండ్. మనకి పేమెంట్స్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చాయి కంటిన్యూస్ గా 2 days బ్యాక్, మేబీ ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఐ గెస్. ఆ తర్వాత నైట్ అంతా కూడా చాలా మంది సపోర్ట్ టీం వాళ్ళు కూర్చొని, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు కూర్చొని ఆ ఇష్యూ అనేది అర్ధరాత్రిలో నైట్ కూర్చొని ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేశారు. లెటెస్ట్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు మెక్డానల్డ్స్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా, మెక్డానల్డ్స్, కేఎఫ్సి. సో మెక్డానల్డ్స్ కి మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది అని అంటే, సో మధ్యలో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఒక AWS సర్వర్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. AWS సర్వర్ అనేది ఫెయిల్ అవడంతో 6 hours లిటరల్ గా 6 hours
వాళ్ళ మెక్డానల్డ్స్ యొక్క వెబ్సైట్ వర్క్ అవ్వలేదు. సో 6 అవర్స్ ఆ మెక్డానల్డ్స్ వెబ్సైట్ వర్క్ అవ్వకపోవడంతో వాళ్ళకి ఎంత లాస్ అయిందో తెలుసా? $20 million ఆ 6 అవర్స్ కి. అది యుఎస్ ఎర్లీ అవర్స్ లో ఆ సర్వర్ అనేది ఆగిపోవడంతో మెక్డానల్డ్స్ కి చాలా పెద్ద లాస్ అది. సో ఆ లాస్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే AWS టీం వాళ్ళకి ఫైన్ వేస్తారు. వాళ్ళు ఆ లాస్ ని అక్కడ బేర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ జరుగుతుంటది. మనకు తెలిసిందంటే ఏంటి, జస్ట్ www.com onpassive.com ఓపెన్ చేస్తాం, లేకపోతే ofounders.net ఓపెన్ చేస్తాం, పేమెంట్కి వెళ్తాం, పేమెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఏదో జరుగుతుంది పట్టించుకోవట్లేదు, ఏదో జరుగుతుంది పట్టించుకోవట్లేదు అనకూడదు. సో యాక్చువల్గా ఇలా పేమెంట్ ఫెయిల్ అయింది అనే విషయం మనందరికంటే ఫస్ట్ కంపెనీ వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి రెడ్ కలర్ లో బ్లింక్ అవుతా ఉంటది పేమెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయినప్పుడు. సో మనం వదిలేస్తాం, సరే ఇంకొక 5 minutes 10 minutes తర్వాత చూద్దాం, లేదా నెక్స్ట్ డే చూద్దాం మనం అనుకుంటాం. బట్ అలా వర్కౌట్ అవ్వదు. ఆటోమేటిక్ గా ఇష్యూ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యింది. హైలైట్ అవ్వగానే దానికి సంబంధించిన టీమ్స్ అందరూ కూడా, ఈవెన్ మన తెలుగులో చెప్తారు, మూలలో ఉన్న ముసలావిడ కూడా వచ్చేసి ఆ టైంలో వర్క్ చేయాల్సిందే. వర్క్ చేసి ఆ ఇష్యూ అనేది అప్పటికప్పుడు రిజాల్వ్ చేయాలి. సో అలా రిజాల్వ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి డెడ్ లైన్ ఉంది. ఏ డెడ్ లైన్? రేపు 20th లోపు పెండింగ్ ఐడీస్ అన్ని కూడా యాక్టివేట్ అవ్వాలి. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే, ఇష్యూ అనేది వాళ్ళకి తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం కంపెనీ అనేది లాస్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా కంపెనీ లాస్ కంటే ముందు మన ఫౌండర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా మంది లాస్ అవుతారు. సో బేసిక్ గా ఇదే అండి ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ గురించి, టూల్స్ గురించి. ఈ టూల్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తారు, ఏం డెవలప్ చేస్తారంటే దానికి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఉంటది. సో మెయిన్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మన కంపెనీలో ఓన్ డేటా సెంటర్ అనేది అన్పాసివ్ తీసుకోవడం అనేది దట్స్ ఎ మేజర్ థింగ్. ఎందుకంటే ఈవెన్ మా కంపెనీ ప్రపంచం మొత్తం దాదాపు ఎన్ని కంట్రీస్ అయితే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ లో మా కంపెనీ ఉంది. దాదాపు 300 కంట్రీస్ లో మా కంపెనీ ఉంది. ఎందుకంటే మాది బ్యాంకు, యుఎస్ లో మాది టాప్ మోస్ట్ బ్యాంకు. సో బేసిక్ గా ఏమవుతుంది అని అంటే మా కంపెనీ కూడా ఓన్ డేటా సెంటర్ అనేది మాకు లేదు. మాకు సర్వర్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ ఓన్ సర్వర్స్, ఓన్ డేటా సెంటర్ లేదు. కానీ యాష్ ఈజ్ ఎ వెరీ జీనియస్. అసలు ఓన్ డేటా సెంటర్ కి, అసలు డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి అనేదాన్ని జస్ట్ 1 or 2 minutes లో నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. డేటా సెంటర్ మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక డేటా సెంటర్ కావాలి. నేను నా డేటాని ఒక చోట నేను హోస్ట్ చేయాలి, ఒక చోట నేను నా డేటాని పెట్టాలి. ఇది మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఒక చోట ప్లేస్ అయి ఉంటాయి, అదే డేటా సెంటర్. అలా ఆ డేటా సెంటర్ ఓన్ గా పెట్టడానికి, తర్వాత రెంట్ కు తీసుకోవడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. రెంట్ కు తీసుకోవడం వల్ల బేసిక్ గా బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటది అని అంటే, AWS కానీ, AWS బాగా సక్సెస్ అవడానికి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ బాగా సక్సెస్ అవడానికి కారణం పే యాజ్ యూ గో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంటికి చుట్టాలు వస్తారనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, మన ఇల్లు సరిపోదు అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒక చోట ఒక గెస్ట్ రూమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది మంత్ మొత్తం రెంట్ పే చేయడం ఈజీగా ఉంటదా? లేదా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు మంత్లీ 1 or 2 days 3 days వచ్చినప్పుడు ఆ 3 days కే రెంట్ పే చేయడం ఈజీయా? సో మంత్ మొత్తం రెంట్ పే చేయడం అనేది ఓన్ డేటా సెంటర్. సో మంత్ లో 3 days మన ఫ్రెండ్స్ గెస్ట్లు వస్తే ఆ డేటా సెంటర్ ని మనం రెంట్ కి తీసుకుంటాం. 3 days నా ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, సో ఆ 3 days కే నేను రెంట్ పే చేస్తాను. సో నేను ఫుల్ మంత్ కి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే నాకు ఎక్కడో ఒక చోట అకామిడేషన్ అనేది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. డేటా సెంటర్ కూడా అంతే. బట్ యాష్ ఎందుకు ఇంత పెద్ద డెసిషన్ తీసుకున్నాడు అని అంటే, డేటా సెంటర్ లో కూడా ఇట్స్ ఎ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. హైదరాబాద్ లో డేటా సెంటర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు. ఆల్మోస్ట్ 2000 acres లో అది డేటా సెంటర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు AWS వాళ్ళు, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు. అది చూసి వెంటనే మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ వాళ్ళు కూడా హైదరాబాద్ లో ఒక డేటా సెంటర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. లార్జెస్ట్ డేటా సెంటర్ ప్రపంచంలో, యుఎస్ తర్వాత 2వ లార్జెస్ట్ డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉందంటే మనం హైదరాబాద్ లో పెడుతున్నారు. దానికి ఆల్మోస్ట్ 2500 నుంచి 3000 crores దాకా AWS వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఫ్యూచర్ లో మనం కూడా ఈ AWS వాళ్ళకి కంపల్సరీ కాంపిటీషన్ గా వస్తామని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ద వే యాష్ ఈ స్పీకింగ్, యాష్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తుంటే మన కంపెనీ అనేది ఈ డేటా సెంటర్ లో ఈ టూల్స్ అన్ని ఒక ఎత్తు, వన్ సైడ్, బట్ కమింగ్ టు ద డేటా సెంటర్ ఇట్స్ ఎ రెవల్యూషనరీ. సో హ్యూజ్ అమౌంట్ మనకి డేటా సెంటర్ ద్వారా మనకి రాబోతుంది. ఎందుకు అనంటే మనం వేరే డేటా సెంటర్ నుంచి మన డేటా సెంటర్ కి రావడానికి కారణం, ఎవరైనా అంతే, ఏం ఆలోచిస్తారు? కాస్ట్ ఆలోచిస్తారు, సెక్యూరిటీ ఆలోచిస్తారు. సేమ్
కాస్ట్ విషయంలో యాష్ కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాడు, తగ్గుతున్నాడు. బట్ సెక్యూరిటీ విషయంలో AWS అమెజాన్ వాడితో ఢీ కొంటున్నాడు. ఎందుకంటే మార్కెట్ లో 70% డేటా సెంటర్ ని క్యాప్చర్ చేసింది ఏంటి అని అంటే అమెజాన్ వాడే. సో వాడిని ఢీ కొట్టాలంటే కాస్ట్ అనేది కంపల్సరీ తగ్గించాలి, బట్ సెక్యూరిటీ అనేది దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వాలి. సో ఈ విధంగా యాష్ అనేది డేటా సెంటర్ తీసుకోవడం చాలా గ్రేట్ అండి. థ్యాంక్స్ టు యాష్. సో దట్స్ ఇట్ పూజ. Anybody have any questions, please reach out to me. Thank you, Narasimha sir. I do not know. Is it Ash sir or not? There is someone in the name of Ash sir with us. I don't know if it is really Ash sir or. Please unmute yourself. I don't think so. He is not. Maybe. Who is Mr. Ash here? Can you help? Someone is in the name of Ash Mufara. So please, if you're not, if I do not know, I'm very confused on this. I am giving unmute option, ma'am. Wait. Yes, yes. Yeah, video option also. Please unmute yourself, as Mufara sir. Yes. I think it's fake, ma'am. It's 100% fake. Rename it, ma'am. Just I will rename it. The name, the way of charting, it seems he is not Ash. 1 second. He is unmuted. Please speak up, sir. If it is really you or. Hello. I do not know. Ma'am, it's fake, ma'am. See the spelling. Spelling also is wrong. MUFAREH. MUFAREH. Please do not do such kind of cheap games. Please, it's a request to please do not do such kind of a cheap games just to spoil someone's webinar. Udaji, please, I request you, please remove this person from cost. Okay, thank you. And Narasimha Reddy, go ahead, continue. I'm so sorry. Yeah, no problem. Yeah, that's it. Actually, I have done my. Anybody have any questions related to anything about yes, Narasimha Reddy sir, I have a question. Like, I want you to explain the same thing at least little in English, because I know like you are very fluent in English. So if there are so many people who do not understand Telugu, and this topic is very important for us. So I can understand a bit. So I know this topic is very important. So I want you to help us even the same topic in English in brief at least. Now? Yes. Okay, no issues. See, what I told, I compare. The main thing is I explained about the data centers. Data center is a very, 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 very vast business. So entire old market, AWS, Amazon Web Service data centers occupied almost 70%. Compared to AWS, remaining Microsoft Azure and Google GCP is there, but they are not giving this much amount of services. But Ash entered into our OnPassive entered into the this data center concept. Actually, data center, what I told, actually in Hyderabad, Amazon is constructing one data center. It's almost 2,000 acres, and it's investing almost 2,500 to 3,000 crores on that particular data center only. So the thing is, why I told you the difference between what is a data center and why you use the data center. There is actually, if I have a company, what I will do, I want to buy a data center, I want to construct a data center, I will pay and take the rent. Okay, that is easy. For example, if you take your house is very small, so but your friends or family members will come in weekly or monthly couple of times. Okay, what we will do, if we would like to take a house rent per month, we have to pay that particular rent to that particular month. So that is very difficult. For example, if your friend will come on every month, 10th or 11th or 12th, any 3 days. So if you have, they gave the option, whenever your friends come, how many days they will be there. For that particular time, we have to, you have to pay the money. That is easy, right? Instead of taking the rent for complete 1 month, we have to, pay and use.
that is a very good policy. Remaining companies are not giving, but only AWS is giving. So I know Ash aware of this, all these things I know. So what our OnPassive is also doing, this is a revolutionary actually. So we are competitor to the AWS because Ash is always competitor to the top one. So what he will do is competitor to the AWS. What he will do, he will compromise for the rent facility. He will decrease the rent, but he won't compromise the security issue, because security is the matter. Money is the not matter. Money is secondary. Security is the matter. Recently, what happened in Google a couple of days back, there is something very small information leaked. The government of US court, it's almost 100 billion something fine to the Google. So security is very important. I know Ash is taking all these parameters, everything. So that's it, Pooja ma'am. If you have any questions, let me know. Oh, very well said, Narasimha sir. I completely agree. Yeah, all these are one side, but data center is another side. All 50 tools, 100 tools, 250 tools aside, but all this data, where it will go? It will go to ultimately, data center, right? So if you Right. have to pay huge amount to the other data center, why do we need to enter into our own data center field? So that's why Ash is a genius. So he planned 3 years back, but he revealed 3 months back. That's a very great actually. People think Completely agree. Nothing is possible without the data center security. So I yes. completely agree with whatever points you have highlighted. Yes, this is everyone should know. Before starting with the next section for Bhupendraji, would anyone like to share something from the panel to Narasimha Reddy sir? From the panel, if the other questions and answers I'll be taking it at the end. Yes, Khushbuji, please unmute yourself. I say thank you, Narasimha sir. You have raised such a great topic about data center, because some of us also don't aware about data center, and data center is very, very essential to everyone. So just thank you, nothing else. Thank you. Thank you, Khushbuji. So can we, Sampath ji, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? कंटिन्यू कीजिए मैम. Okay, thank you, sir. Next we have one more great presenter. Next जो हमारे presenter एक और मुकेश जी कुछ बोलना चाह रहे, please मुकेश जी. मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी नरसिम्हा सर ने जो बताया डेटा सेंटर के बारे में, वो बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा बताया उन्होंने. जैसे कि उन्होंने एक वर्ड बोला कि सारे हमारे टूल एक तरफ और डेटा सेंटर हमारा एक तरफ. वो एक्चुअल में ऐसा होने वाला है कि डेटा सेंटर का जो बताया, रैंट का एक एग्जांपल देके बताया, वो एक्चुअल में ऐसा होने वाला है कि जो अपना खुद का डेटा सेंटर, अभी एसर ने बताया हमारा एक डेटा सेंटर बनना है. सेकंड डेटा सेंटर जो लार्जेस्ट डेटा सेंटर है, बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनने वाला है हमारा. तो जब इसका पूरा रैंट या आई मीन जो होस्टिंग वगैरह सब कुछ रहेगी हमारे, जब उसके पास हमारे पास उससे हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होगा हमारा कि वो एक तरफ जो डिजिटल टूल है वो एक तरफ हो जाएंगे, वो हमारा एक तरफ हो जाएंगे. अभी AWS का है, उसका अराउंड 29 या 30% उसका रेवेन्यू सिर्फ डेटा सेंटर से ही आता है, उसका रेवेन्यू. So data center is a big big thing in our organization. Thank you. Thank you मुकेश जी. नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी एक और प्रेजेंटर बाकी है हमारे बीच में जो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं और हर एक को हेल्प करते रहते बैक एंड से, पर्सनल लेवल में भी और इवन मीटिंग्स वेबिनार्स के लेवल में. भूपेंद्र जी प्लीज आपको इनवाइट करती हूँ, बिकॉज आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है. आज का तेलुगु सेशन था एंड हिंदी सेशन था. आप तेलुगु हिंदी दोनों लैंग्वेज प्लस इंग्लिश भी संभाल लेते हो, और प्लीज वेलकम भूपेंद्र जी आपके लिए. Thank you, Pooja ma'am. Am I audible? Yes. So first of all, thank you, Narasimha Reddy sir. ఈ టాపిక్ చూస్ చేసినందుకు. ఎందుకంటే ఈ డేటా సెంటర్స్ అనేది లేదా ఈ టూల్స్ అనేది మన లైఫ్ లో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది
ఇంతకుముందు న్యూస్ టీవీస్ లో లేదంటే మూవీస్ థియేటర్స్ లో వెళ్ళి చూసేవాళ్ళం. ఈ రోజు అంతా ట్రెండ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. ఇంకా రాబోయే కాలంలో కూడా ట్రెండింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ టాపిక్ అండ్ సెల్యూట్ టు సార్. మీరు ఒక ఎంఎన్సి పర్సన్ అయి ఉండి, జాబ్ పర్సన్ అయి ఉండి ఇక్కడ టైం కేటాయించినందుకు ధన్యవాదములు. So I would like to proceed in Hindi now. Pooja ma'am, can I proceed? Yes, of course, sir. सभी को नमस्कार. मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम भूपेंद्र सिरवी है, मैं राजस्थान से हूँ और बेसिकली मैं जो यहाँ पर आज की टॉपिक है हमारी, जो इम्पोर्टेंस ऑफ टूल्स इन आवर डेली लाइफ. तो जैसा कि अभी नरसिम्हा रेड्डी सर ने कहा है कि जो टूल्स के बारे में, तो मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ. जो पहले 2010 से पहले या 2000 में जब जो 20th सेंचुरी थी हमारी, तो उसमें जैसे कि पहले हम न्यूज़ देखनी होती तो हम न्यूज़पेपर देखते थे और रेडियो में सुनते थे. जैसे मूवीज देखनी होती तो हम थिएटर्स में जाते थे या टीवी पर देखते थे. और जैसे किसी को मैसेज देना होता था तो उस टाइम मैसेज करते थे नॉर्मली, और नहीं तो फिर हम टेलीग्राम जैसे वो पोस्ट के द्वारा लिख के भेजते थे. तो बेसिकली आज सेशन इसी के ऊपर है. तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा दिनचर्या है जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो सुबह से लेके सुबह जो शुरुआत होती है वो अब हमारे इंटरनेट से शुरुआत होती है और शाम को जो खत्म होता है वो भी हमारे इंटरनेट से खत्म होता है. तो आज बेसिकली आप सभी को पता है कि इंटरनेट टूल्स की क्या वैल्यू है. जैसे कि आज सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, क्रोम, फोन पे, गूगल पे, इन्हीं से शुरुआत होती है और शाम को भी इन्हीं से एंड होती है. तो जैसा कि पहले क्या होता था कि जब हम स्कूल में जाते थे या कॉलेजेस में जाते थे तो जब हम स्टडी करते थे तो पहले हम क्या करते थे, रिजल्ट देखने के लिए वेट करते थे. स्कूल में जाके वापस रिजल्ट देखना पड़ता था. उसके बाद में क्या आया कि जैसे हमने हॉल टिकट नंबर डाला, इंटरनेट सेंटर पे गए और हमारा रिजल्ट देख लिया. और आज की तारीख में क्या है, इंटरनेट में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो. और जैसा कि आपको पता है आज व्हाट्सएप के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, फेसबुक पे बगैर नहीं रह सकते हैं. जैसे कि पहले बिजनेस में होता था कि अकाउंट संभालने के लिए हम क्या करते थे, बुक्स मेंटेन करते थे, बुक्स में हिसाब किताब लिखते थे, पूरा उसी तरह से हमारा मेंटेनेंस चलता था. तो आज के जमाने में क्या आ गया, टैली आ गया. टैली आने से क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है पूरा ही चेंज हो गया. और जैसे हम क्रेडिट दे देते, तो क्रेडिट देने के लिए हम क्या करते थे, पहले बुक्स में नोट डाउन करते थे. आज के जमाने में क्या है कि क्रेडिट संभालने के लिए कुछ एप्स आ गए हैं. जैसे उनका नाम है, क्रेडिट के नाम से कुछ है, तो आप उनमें सिर्फ डायरेक्ट एंटर करना काम है और जब भी आपको चाहिए तो फिर अपने मोबाइल नंबर डालो, अपना डेटा रिकवर हो जाता है. और सेकंड, पहले हम जब मूवीज देखने के लिए थिएटर में जाते थे या टीवी पर देखते थे, तो आज के जमाने में क्या हो गया, MX प्लेयर आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया या यूट्यूब आ गया, तो आज हम इन पे देख लेते हैं. तो बेसिकली आज जो इंटरनेट टूल्स है वो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है वो आप सभी को पता है. इंटरनेट नहीं है तो हम नहीं है. तो सीधी सी बात है कि आने वाले समय में जो इंटरनेट का पावर होने वाला है उसका आपको पता है, और बगैर इंटरनेट कुछ नहीं होने वाला है. और जो हमारे ऐश मुफारे सर कर रहे हैं, जो एक इंटरनेट का मॉल बना रहे हैं, सीधी सी बात मैं बोलूँ तो एक मॉल है इंटरनेट का, जो 50+ टूल्स लेके आ रहे हैं, जो टूल्स हमारे डेली लाइफ में यूजेस होने वाले हैं, जो हमारे बिजनेस में यूजफुल होंगे. जैसे कि हमने वेबसाइट बनाने के लिए यूज होने वाला है, या जैसे आज हम देख रहे हैं, आज जब से पैंडेमिक आया है, जब से कोरोना है, उससे पहले सब बिजनेसेस ऑफलाइन होते थे. सिर्फ एक पैंडेमिक, एक कोरोना आने की वजह से सारे के सारे बिजनेसेस जो है ऑनलाइन पे डाइवर्ट हो गए. और
जब आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक से पहले जूम को कोई नहीं जानता था कि जूम क्या होता है, लेकिन आज हर एक घर में जानते हैं कि जूम क्या है। आज जो उनके बच्चे हैं वो भी आज ऑनलाइन स्टडीज करते हैं जूम के माध्यम से या बायजूस के माध्यम से। तो हमारा जो टूल आ रहा है वो है वो अकेडमी और वो कनेक्ट। तो बेसिकली जो अभी मार्केट में टूल्स है हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। जब एस सर बोलते हैं कि हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हम किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो सारा का सारा सिस्टम है एआई बेस पे चलने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे। और जैसा कि अभी डेटा सेंटर्स जो मेन हमारा टॉपिक है आज, डेटा सेंटर जो अभी नरसिम्हा रेड्डी सर ने लिया था। तो आज जितना भी बायजूस है या फिर जूम है या फिर क्रोम गूगल है या फेसबुक है, ये सब अपना डेटा कहाँ पर स्टोर करते हैं? सिर्फ एक डेटा सेंटर में स्टोर किया जाता है। तो जब एस मुफारा सर ने ओन डेटा सेंटर हमारे फाउंडर्स के लिए एक ओन डेटा सेंटर क्रिएट कर दिया है, और सेकंड जो बड़ा लार्जेस्ट डेटा सेंटर आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा सेंटर ऑन पैसिव बनाने जा रही है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है और हम कहाँ पे जा रहे हैं। सो थैंक यू पूजा मैम। इसमें अगर कोई कुछ और ऐड करना चाहता है तो ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। एकेडमी का सिंस आपने आज बात किया है सर, कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट जरूर करूंगी जो आज सर ने कहे थे, बिकॉज थोड़ा सा टाइम अभी भी है हमारे पास। सो एकेडमी का सर ने आज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे, और ये भी कहे थे एकेडमी बस और बस प्रॉपर ये जो अभी सिस्टम है स्टडीज का सिस्टम वैसा नहीं रहेगा। ये प्रॉपर आपका इन टर्म्स ऑफ जब एकेडमिक होगा तो इसमें लाइक प्रॉपर टीचिंग सिस्टम बस नहीं रहेगा जो ओल्ड मेथड है और आउटडेटेड हो चुका है, ऐसा टीचिंग सिस्टम नहीं रहेगा। इसमें स्पेशली आपको हॉबीज का किसी को सिखाना हो या म्यूजिक कुछ किसी को ऐड करना हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो एजुकेशन के रिलेटेड आती है। और इसी कारण से इसको हम लोग एजू मीडिया ये मतलब EDU मीडिया बोलते हैं, जो ओ मीडिया है। ओके, ओ मीडिया का एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑलरेडी ऑन पैसिव में है, जहां 20 स्टाफ, वो भी प्रोफेशनल प्रोफेसर्स वर्क कर रहे हैं। एंड उसमें से कुछ प्रोफेसर्स फुल टाइम वर्क कर रहे हैं और कुछ प्रोफेसर्स ऑलरेडी हैज अ कंसल्टेंट लेवल बात कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम सर ने ये भी कहा ये जो पूरा टीम है वो जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड 1500 स्कूल्स को कांटेक्ट किए हैं, और वो स्कूल्स के थ्रू उन्होंने जो जो इम्प्लीमेंटेशन डालना है वो सब कलेक्ट किए हैं। और आगे आने वाले फ्यूचर में हर स्कूल को एकेडमी के थ्रू ही स्टडीज करवाना पड़ेगा। सो हम लोग जैसे सोचते हैं, सोचो कि छोटी छोटी शहर में भी आजकल स्कूल्स है, भले वो गवर्नमेंट का हो भले वो प्राइवेट हो या कोई भी हो, हर स्कूल्स को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप सोचो ऑलरेडी 1500 स्कूल्स में वो लोगों ने डिस्कस, यूनिवर्सिटी में डिस्कस करके, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में डिस्कस करके क्या फीचर्स उसमें इनबिल्ट होना चाहिए वो सब करके ऑलरेडी एकेडमी बिल्ड किए हैं। सो एकेडमी जब बोलेंगे वो एजू मीडिया रहेगा, वो मीडिया। ओके, सो एकेडमी बस ये सर ये बहुत एक्साइटिंगली सर ने ये बोले थे इसी वेबिनार में, आज जो वेबिनार हुआ था उसमें इतना अच्छे से एक उनका जो अट्रैक्टिव लगा सर, जो सेंटेंस और कॉन्फिडेंट और इमोशनली सर ने जो बोले थे, वी विल चेंज द वर्ल्ड, नॉट वी माइट, नॉट वी मे बी, और नॉट ऐसा, मतलब ये नहीं है कि हमारे इसमें डाउट है, वी विल चेंज द वर्ल्ड, कोई इसमें डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर सकते हैं क्या, कर पाएंगे क्या, ये कभी क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। वी विल, ये हमारा 100% श्योर है कि हम चेंज करेंगे एकेडमी के थ्रू। और इवन उसके बाद बहुत सारा अपडेट्स दिए हैं सर ने। बस आज टॉपिक भूपेंद्र जी ने एकेडमी के बारे में बोले तो इसका हाईलाइट करना मेरे को जरूरी लगा। तो आप सोचो कि 1500 स्कूल्स में ऑलरेडी कांटेक्ट करके उन्होंने ये बिल्ड किया, और सेकंड हर स्कूल्स, हर यूनिवर्सिटीज को एकेडमी की जरूरत पड़ने वाली।
सो एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ये कैसा इनबिल्ट होगा वो हम पीछे सोच भी नहीं सकते, उनकी विजन तक पहुंचने का दूर की बात है। सो थैंक यू भूपेंद्र जी, ये टॉपिक आप हाईलाइट करने के लिए। डेफिनेटली एक्साइटिंग टॉपिक है, बिकॉज नेवर एंडिंग टॉपिक है ये। इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो भूपेंद्र जी? जी नहीं मैम, जैसा आपने बताया कि नेवर एंडिंग टॉपिक है, ऑन पैसिव ऐसा ही है, कभी एंड नहीं होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम सोते हैं लेकिन ऑन पैसिव नहीं सोता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और जैसे हमारे जो सीईओ सर हैं, इतना डेडिकेटेडली वो काम करते हैं कि दिन में 1-2 घंटा या 3 घंटा सोना रेस्ट भी नहीं लेते हैं। और हम अभी देख रहे हैं कि वो हमारे वेबिनार्स में भी आते हैं, बैक एंड टेक टीम को संभालना पड़ता है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट्स को संभालनी पड़ती है। रियली हैट्स ऑफ टू एस मुफारे सर, जो एक ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और बस हम उसी जर्नी में उनका साथ दे रहे हैं मैम। थैंक यू मैम। डेफिनेटली भूपेंद्र जी, कंप्लीटली एग्री। आज आप दोनों को क्रेडिट्स देने के लिए और कुछ वर्ड्स रखने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल मेंबर श्रीनिवास जी भी है। प्लीज श्रीनिवास जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you so much, madam. थैंक यू श्रीनिवास। पहले congratulations to you. हमारा पैनल से आप आज हैश सर से बात किया, ये बहुत गर्व की बात है। एंड తెలుగు వాళ్ళందరికీ నమస్కారం। Sir, I request you, please, can you, if you possible, please open your camera. So one. Thank Sir, you. సో తెలుగు వాళ్ళందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు ఆన్ ప్యాసివ్ ఇందాక నరసింహారెడ్డి గారు మనకి ఇచ్చినటువంటి సెషన్ చాలా అద్భుతం, చాలా చక్కగా చెప్పారు। సో నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి ఆన్ ప్యాసివ్ గురించి అంటే, మీరు ఆన్ ప్యాసివ్ ఏం జరుగుతుందో ఎన్నెన్నో ఈ రోజు చేస్తాం రేపు చేస్తాం అనేవి చాలా చూస్తాం। ఫస్ట్ హైదరాబాద్ లో మనకు ఆఫీస్ ఇంతలా ఉంటుందని తెలియదు, కానీ మన కళ్ళ ముందు ఇంతమంది ఎల్సీ మెంబర్స్ ని తీసుకొచ్చి ఇది మన స్థానం, ఇది ఆన్ ప్యాసివ్, ఇది మన స్థావరం అని చెప్పి గొప్పగా ఒక సెషన్ జరిపించారు డిసెంబర్ 4 నుంచి 6 వరకు 2020లో। అది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి। తర్వాత డేటా సెంటర్ గురించి నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పారు। మనకు 3 నెలల క్రితం మాత్రమే చెప్పారు ఇలా డేటా సెంటర్ ఉందని, కానీ వారు పడుతున్న తపన 3 సంవత్సరాల నుంచి పడుతున్నారని। దుబాయ్లో ఇంతలా గొప్ప ఆఫీసులు 2 వస్తాయని మనకు తెలియదు, అసలు ఎవ్వరూ ఊహించినటువంటి ఒక అద్భుతం ఇది। అలాంటిది టాప్ లో మనల్ని ఇది దుబాయ్ ఆఫీస్, ఈ 2 అక్కడ ఉన్నాయి అంటే అది కేవలం మన ఆన్ ప్యాసివ్ మాత్రమే కాదు, అది మనందరి స్థావరం, మనందరి ఒక గొప్ప గుర్తింపు। సో మీరందరూ ఎంతగానో ఆనందిస్తున్న తరుణం చాలా దగ్గరలోనే ఉంది। గుడ్ డేస్ ఆర్ కమింగ్, ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్। మీ అందరూ మంచిగా ఎంజాయ్ చేయాలని ఇలాంటి సెషన్ ని చక్కగా నిర్వహించినందుకు మన తెలుగు వారందరి తరఫు నుంచి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు, కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాను పూజా మేడం కి। ఎందుకంటే హ్యాష్ గారి తోటి డైరెక్ట్ గా ఈరోజు వారు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మా ప్యానెల్ నుంచి వారు వెళ్ళి మాట్లాడడం మా అందరికి ఎంతో గర్వకారణంగా ఉంది। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం। थैंक यू श्रीनिवास जी। उसमें नरसिम्हा सर कुछ हाईलाइट करना चाह रही है। नरसिम्हा सर। Srinivas, hi, how are you? Hi, fantastic sir. Yeah, actually about you on yesterday's session, on yesterday or day before session, Neeraj Dalvi highlighted you. Have you seen that part? No sir, I am not attending in this Actually, meeting. Narasimha sir, Srinivas ji is such until and unless I contact him, he will not listen to anyone's session, sir. Right. Yeah, I spoken with him personally, a couple of times. Actually, we thought. Actually, we both will do. Actually, do program in Vijayawada, in our native place. By the time campaign part. Yeah. It was missed, unfortunately, but we will together definitely will do. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్, మమ్మల్ని పిలుస్తారా పిలవరా? అయ్యో భలేవారే, మనందరం ముందుంటాం। See, you guys will be there in our native place in Vijayawada, Hyderabad. You guys always please feel free to come to my home. You are my family. Definitely, sir. Definitely.
I need to highlight the entire team. Like everyone here, Srinivas ji, he is blind. Okay, but he never thought his blindness has weakness. He made it as his strength. He is well known as a very good singer, one, and he comes in the ETV show Navaratri. Now the function Navaratri, he is getting trained for this Navaratri 9 days program. Okay, but still he took time because it was Telugu sessions, especially for Narasimha sir and Bhupendra sir. He's here to hear your Telugu session specially. So I congratulate him for getting selected in ETV for this year for Navaratri show. And Telugu show, please don't miss the show because he sings very well. Last year in some celebrations he has sung. In the webinar also he has sung. So please, if you have missed that, there must be some recording of it. I'll definitely try posting it if we have any kind of a recording of that. But he is a very good singer. One day I'll definitely ask him to sing for all of us here too. And secondly, he has built his own team. 2,000 plus people are under his team. Right, Srinivas ji? Yes, ma'am. Near about 3,000, madam. Now it is 3,000. Okay. It's near about 3,000 people are in his team. He has built. And thirdly, he has around 800 people, blind people associated with him. Right, Srinivas ji? Srinivas ji? Madam. Am I right? Yeah, yes, madam. Yes. So he has approx. He comes to webinar. He listens to webinar. He explains his team. So he is very well motivated to everyone. And same thing, I will definitely want to explain it in Hindi also. जो श्रीनिवास जी के बारे में जो नहीं जानते हैं उनके लिए है ये एक्चुअल में ब्लाइंड है, बट कभी उन्होंने ब्लाइंडनेस को वीकनेस नहीं समझे. वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉपुलर बनाए हैं कि आज के दिन वो सबसे पहले एक ग्रेट सिंगर है और ईटीवी तेलुगु में आते हैं. उनकी म्यूजिक शोज बहुत सारा ईटीवी म्यूजिक्स में आए हैं और मैंने सुनी भी हूँ कई सारा उनका म्यूजिक्स. एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने ईटीवी म्यूजिक्स में आए हैं. अभी आने वाली नवरात्रि में है जो 9 डेज का उनको शो मिला है, उसकी ट्रेनिंग वो कर रहे हैं. एंड फिर भी इधर आज टाइम लेके आए बिकॉज ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश और आज तेलुगु सेशन चल रहे थे नरसिम्हा सर और इनसे. सॉरी मीरवेली सर, प्लीज अपने आप को आप प्लीज वीडियो में मत आइए, आप बनियान में हो तो. मैम मैंने स्टॉप कर दिया. यस. सेकेंड, वो ईटीवी से है. सॉरी, ये नवरात्रि में 9 डेज प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं. सो उनकी शोज प्लीज देखिए ईटीवी तेलुगु में. एंड थर्ड, उन्होंने अपने खुद की 3,000 से प्लस टीम बनाए हैं. एंड प्लस वो उसमें उनके लाइक अप्रॉक्स इवन ब्लाइंड लोगों का भी टीम है 800 मेंबर्स तक. और ये हर एक वेबिनार्स को सुन के उनको पूरा एक्सप्लेन करके उनको अप टू डेट रखते हैं. ही इज सच अ डेडिकेटेड पर्सन. सो प्लीज आई वांट एवरीवन टू अपलॉज हिम एट लीस्ट वंस. Thank you so much. Whatever the points you explained, the same point explained to Ash by Mr. Neeraj Dalvi. Yes, because I have already done this in the last webinar, sir. Earlier. Yeah, great. Yes. Thanks, Srinivas ji, so much. Thank you so much, madam. And one more important person is there in this panel actually, Srinivas Tenkurala. Okay. Hi, Srinivas Tenkurala garu. Okay, now Srinivas, yes, I found them. Srinivas Tenkurala, can you? Yes, I have put them into co-host, sir. Yeah. Yep. Please unmute yourself so you can have a word because Narasimha Reddy sir wants you to be introduced. Hi, Srinivas Tenkurala garu. Can you hear us? Sir, vinipistunda? Srinivas Tenkurala from Vizag, Visakhapatnam. He's also a very good leader. He's also a very good. I'm giving an option to unmute, but Not sure. Hi, Srinivas Tenkurala garu. Can you hear us?
No, you can go ahead whenever. Okay. అన్మ్యూట్ అవడం లేదు. Okay. Now since the presentation is done, like we will go for the question and answer session. Anyone has any questions, or anyone has even the feedbacks in any which ways, only in positive manner, please please raise your hands. किसी को भी अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लिया जाएगा. प्लीज अपने हाथ को आप रेज कीजिए. हम लोग एक बाय एक क्वेश्चंस लेते जाएंगे, या कोई भी आपको शेयरिंग्स रखना है तो उसके पहले हमारे पैनल से संपत जी कुछ शेयर करना चाहते हैं. प्लीज संपत जी. संपत जी आप म्यूट हो. यस, एम आई ऑडिबल मैम? यस यस संपत जी, परफेक्ट. तो मैं जो आज पूरे घटनाक्रम हुआ था आईडी स्टॉपअप और पेंडिंग आईडी ट्रांसफर को, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैम, अगर परमिशन हो तो. संपत सर, सॉरी टू मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा. प्लीज आप इस चीज पे रोशनी डालिए. कुछ लोग जो है ना कैमरा ऑन करके बैठे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहिए सर आप प्लीज. सर देखिए, हम बार बार नहीं कह सकते, ये शोभा नहीं देता. आप उनका, आप होस्ट हैं, उनको बिल्कुल आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि बार बार कहने से बच्चे तो है नहीं यहाँ पे, सारे बड़े हैं, तो उसमें हमें बार बार नहीं किसी को कहना. तो थैंक यू भूपेंद्र जी. तो आज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सुबह से आईडी सुबह टॉपअप हो रही थी, लेकिन बीच में फिर मतलब लगभग सुबह 11-12 बजे से लेके आई थिंक 3 बजे तक टॉपअप होना बंद हो गया था. इसका रीजन ये था कि हमारे जो वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है वही एक पार्ट था. 2 मेजर प्रॉब्लम पिछले 2 दिनों से कई फाउंडर्स जो कि मतलब फेस कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने किसी के साथ आईडी ट्रांसफर करवाई है और जब आपके मेल के ऊपर पासवर्ड आता है, तो उस पासवर्ड से आपकी आईडी 90% ओपन नहीं हो रही. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज पूरे दिन सभी लोगों ने फेस की है. मैंने भी की है, मैंने भी काफी सारी ट्रांसफर की थी. तो उसके लिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी के आईडी को ट्रांसफर करते हैं तो अगर वो ओपन नहीं होती है तो प्लीज आप रीसेट पासवर्ड करें. और उसमें जब आप रीसेट पासवर्ड करेंगे और जो नई वाली जो आईडी जो ईमेल आपने ट्रांसफर की थी वह ईमेल पुट डालें, और जब ओटीपी आएगा तो ओटीपी डालेंगे, और जो नया पासवर्ड आएगा तो उस पासवर्ड से आपकी आईडी 100% ओपन हो जाएगी. ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है. सॉरी, ये जिसकी भी आवाज आ रही है प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए. थैंक यू. तो जिन लोगों ने आज आईडी ट्रांसफर करवाई है और किसी कारण से उनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल आज करके देखा है, जो पासवर्ड हमारी कंपनी के द्वारा फर्स्ट टाइम जब हम ट्रांसफर करते हैं जनरेट होकर हमारे मेल पे आता है, उस पासवर्ड को डालने से अगर आपकी आईडी ओपन नहीं होती है तो आपको उस टाइम रीसेट पासवर्ड पे जाना है. और जब आप रीसेट पासवर्ड करेंगे तो ओटीपी आएगा. ओटीपी डालने के बाद में आपके पेंडिंग आईडी है उसमें नया जनरेट पासवर्ड होगा और वह डाल के आप ओपन कर सकते हो. ये तो बात हुई जो आईडी ओपन नहीं हो रही है. दूसरी, सुबह से एक और प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो है टॉपअप से रिलेटेड. कई लोगों की आईडी टॉपअप नहीं हो रही है और कई लोगों की हो भी रही है. दोनों बातें हैं. कुछ तो बैंकिंग इश्यू भी कह सकते हैं, बैंक का सर्वर भी मतलब प्रॉब्लम में था सुबह से, तो कई लोगों की उस वजह से भी नहीं हुई. और कुछ कार्ड की वजह से, जैसे वीजा कार्ड था, बहुत ही स्मूथली उससे आईडी टॉपअप हो रही थी. और जो मास्टर कार्ड था उसमें सुबह थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आपसे आईडी टॉपअप हो जाती है इजी वे तो कर दीजिए, और अन्यथा नहीं होती है तो कई लोगों का पेमेंट फंस सकता है. इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें. और
फिर भी अगर किसी की आईडी वगैरह ओपन नहीं होती है तो प्लीज, मैं भूपेंद्र सर है हमारे बीच में, वो अभी आपको नंबर दे देंगे इस चैट बॉक्स में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बताएंगे वो कैसे ओपन करना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपडेट थी, जानकारी थी, आपके बीच में शेयर करना चाहता था। तो थैंक यू पूजा जी मुझे इनवाइट करने के लिए, और अभी आपके बीच में जो भी हैंड रेस है उनको इनवाइट कीजिए। Thank और you. तो Thanks. सर 1 मिनट, ये तेलुगु में Thank सब you, लोगों को Sampath ji. बताते फिर लेंगे। Yes, श्रीनिवास जी, yes, आप क्या बोल रहे थे? तेलुगु में ये बोल तेलुगु रहे में बताएंगे मैम। थे। यस यस, और एक और रिक्वेस्ट है श्रीनिवास जी, आपने जो तेलुगु में इसके पहले बोले मैसेज में आए हैं कि आप उसको प्लीज हिंदी या इंग्लिश में भी बोलिए ताकि लोगों को समझ सके। థ్యాంక్ యూ మ్యామ్। సంపత్ సార్ చెప్పింది ఈ 2 రోజుల నుంచి మనకు దిస్ క్రెడెన్షియల్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ అని వస్తోంది. మనం టైప్ చేసినప్పుడు వెంటనే మనకు మెయిల్స్ మార్చినప్పుడు ఎవరైతే పెండింగ్ ఫౌండర్స్ ఉన్నాయో వారి తాలూకా మనం వివరాలను తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆ వివరాలని పెట్టినప్పుడు మీరు అలా కాకుండా ఏవైతే రీసెట్ పాస్వర్డ్కి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మీరు అప్లోడ్ చేసి ఓటీపీ వచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్ క్రోమ్ కు వెళ్ళకండి. లాగిన్ అక్కడ మీ మెయిల్లో ఏదైతే పాస్వర్డ్ వచ్చి ఉంటుందో అక్కడే క్లిక్ హియర్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా మీకు ఓ ఫౌండర్ సైట్ కి తీసుకెళ్తుంది. ఆ సైట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కంపెనీ ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ని మీరు అక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు పేమెంట్ ఆప్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది. చాలా మందికి ఈ 2 రోజుల నుంచి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దయచేసి దీన్ని గమనించి మీరు వెంటనే పేమెంట్ చేసుకుంటే, ఇది ఎందుకు ఇలా వస్తుందంటే ఇక్కడ 2 రోజుల నుంచి మనకు ఓటీపీస్ రావట్లేదు. ఇది సెక్యూరిటీ రీజన్ అంతే తప్ప మిగతా ఏం కాదు. సో దీన్ని దయచేసి అందరూ గుర్తించి ఈ సెక్యూరిటీ రీజన్ ని మీరు అందరూ గుర్తుంచుకుంటారని, ఈ క్రెడెన్షియల్ ని మీరు రీసెట్ పాస్వర్డ్ ద్వారా క్లియర్ చేసుకుంటారని, డైరెక్ట్ గా అక్కడ క్లిక్ హియర్ ఇచ్చి మీరు మీ కార్డ్స్ ద్వారా పేమెంట్ చేసుకొని ఈ చిన్న పరిష్కారాన్ని మీరందరూ పొందుతారని సంపత్ సార్ నుంచి మీకు వచ్చినటువంటి ఒక చిన్న విషయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ओवर टू पूजा मैडम। थैंक यू श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, आपने जो तेलुगु में पहले बोले थे उसको क्या आप हिंदी या इंग्लिश में बोल सकते हो? हमारा ऑन पैसिव के लिए मैं क्या सोच रहे, ऑन पैसिव सभी को आज सेशन में नरसिम्हा रेड्डी सर बताया कंपनी क्या कर रहे डेटा सेंटर के लिए और अपना प्रोडक्ट्स के लिए बताया। मैं क्या बोल रहा हूँ ऑन पैसिव के लिए, ऑन पैसिव क्या करते जब कौन ज्यादा से ज्यादा कंपनीज क्या करते हैं, मैं वो लाएंगे ये लाएंगे ऐसा बताते, बट ऑन पैसिव ऐसा नहीं, काम करके दिखाते। ये ऑन पैसिव का स्ट्रेंथ है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि पहले बिग इवेंट होगा 2020 हैदराबाद में, हमारा ऑफिस खुद का ऑफिस, सो ये बहुत गर्व की बात है। एंड वहां से दुबई में हमारा टॉप ऑफिस 2 वो ऑफिस दुबई में है बोल के किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी पता नहीं चलेगा। बट वो दिन हैशर दिखाया, सभी लोगों को बहुत मजा आया। सो दिस इज आवर ऑन पैसिव का स्ट्रेंथ बोल के। अभी ज्यादा इवेंट्स आने वाले दिनों में हम देखेंगे। रियली ऑन पैसिव का फाउंडर्स बहुत बड़ा बिग प्लेटफॉर्म में रहेंगे। सो ये इसीलिए ऑन पैसिव हमको इनिट टू विनिट बोल के हैशर रखा है। सभी लोगों को एंकरेजमेंट के लिए ये रखा है। सो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पूजा। थैंक यू श्रीनिवास जी, आपने परफेक्टली कहा है। और यस, बिकॉज रिक्वेस्ट आए थे चैट में, इसी कारण से आपसे बोले थे बात करने के लिए। सो एवरीवन मस्ट हैव हर्ड हिम स्पीकिंग इन हिंदी एंड अंडरस्टूड। सो थैंक यू श्रीनिवास जी। एंड हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। लाइक वी हैव ओके, प्रभु सर फ्रॉम कर्नाटका। यस, बिफोर प्रभु सर, यस भूपेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैम मुकेश सागर जी को कोस्ट कीजिए मैम। ओके, आउट हो गए थे क्या? हाँ ओके, ठीक है। ओके, प्रभु जी प्लीज, प्रभु सर प्लीज अनम्यूट ಮಾಡಿ ಸರ್। Hi madam, good evening. Namaste. Namaskar. Madam, my question is to Narasimha Reddy sir. Yes.
You explained about the data center. I listened it. And what is the main difference between data center opened, established by Amazon and our company? So beyond that, you told the security and safe. Beyond this, what is the difference between any? Is there any differences? Oh, that AI has not revealed as of today. Yes. So that answer Yash has to give actually. So obviously, if you are the owner of one company, what you will do? The main difference. See, the cost you will check. Yes. After that, you will check the security. Yes. After that, we'll check the services, what are all the service they are giving. So main services, security, and the money. These three things plays a major role in data center. That service, what are all the services is there in our data center? That we don't know. Actually, Ash has to reveal that. What services is there in AWS that we know because it was came by 2006, not today. Okay. Yes, completely agree ಮೇಡಮ್ with. ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾ sir. ಅವ್ರು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ರಾಜ್ ಸರ್, ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ನಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ನೀವು 1500 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. 1500 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ. 1500 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ಬಟ್ Yes. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು 1500 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Universities. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay. ಅದು 1500 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes. Thank you, sir. Next, we will have Manoj Srivastava. Please unmute yourself, sir. Manoj Srivastava. Yes, नमस्ते मैम. Namaste, sir. सभी को होस्ट को नमस्कार. Namaste. सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि OBS ऑन पैसिव बिजनेस सिस्टम व्हाट इज द वर्क, इसका काम क्या है? थोड़ा समझ में नहीं आया है कि OBS क्या, क्योंकि मीटिंग ही मैंने मिस कर दिया था, इसलिए अभी तक समझ में नहीं पाया कि सिस्टम क्या काम करेगा. दूसरा, सपोर्ट में जैसे इनवॉइस बिलिंग का जो ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है कि किस ऑप्शन के अंतर्गत हम इसको कंप्लेंट डालें, तो उसको किस ऑप्शन के अंदर कंप्लेंट डाला जाए इनवॉइस बिलिंग का आने वाला. ये 2 क्वेश्चन है. अच्छा, हेलो, इनवॉइस का आपका ये क्वेश्चन है कि ब्लैंक में दोनों आती है? इनवॉइस टोटली ब्लैंक है, तो उसमें सपोर्ट में जब डालते हैं तो एक ऑप्शन चूज करने का आता है. जनरल है, इस तरह से रिलेटेड जनरल सपोर्ट, इस तरह से 6 या 7 ऑप्शन आते हैं. तो उसमें कौन सा ऑप्शन को लिया जाए? ओके सर, इसके इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊंगी. उसके पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन था OBS की रिलेटेड. OBS, yes. Okay, anyone in the panel wants to answer? हेलो पूजा Yes. मैडम. हाँ मुकेश सागर जी. हेलो. हाँ मुकेश सागर जी, प्लीज कंटिन्यू. हाँ पूजा मैडम, ये OBS उसका मतलब होता है जैसे कि OBS ओ मतलब ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन बताया गया है. ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन मतलब उसमें जो लिंक होगी ना, वो लिंक की यूजिंग होगी. उसमें जो लिंक होती है ना सर, मनोज सर, जी वहाँ पे वो यूज होगा. ठीक है, वहाँ जो से लिंक अपन फॉरवर्ड करेंगे किसी पास, इसी के थ्रू किया जाए. बिल्कुल. ये मतलब किसको अगर नहीं, जैसे अपना जो अपने एप्स एप्लीकेशन जो आने वाले हैं, क्या हम इसी के थ्रू डाउनलोड करने का वो रहेगा ऑप्शन क्या? नहीं, डाउनलोड नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा. इट्स रेफरल लिंक के लिए काम करेगा इसे. बिल्कुल. और रेफरल लिंक आएगा और हर किसी के रेफरल लिंक रहेंगे. ये OBS में हमने जब डैशबोर्ड दिखा, तो आप डैशबोर्ड देखोगे. एक बार आप एक काम करना, बैक ऑफिस में जाइए, वो बैक ऑफिस में मीटिंग सुनिए, उसमें बैक ऑफिस बाकी संपत सर आप बता सकते हो. संपत सर आपने हाथ ऊपर, हैंड ऊपर किया है, आप बता दीजिए. थैंक यू सर. यस थैंक यू सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद. वैसे देखिए OBS के बारे में तो एक पूरा सेशन लेना पड़ता है, तब जाके क्लियर होता है, और बहुत जल्दी इसका सेशन हम रखेंगे. बट शॉर्ट में मैं एक, जब हम जूम पे बैठे हैं इसकी मीटिंग कर रहे हैं, तो शॉर्ट में मैं एक बात अगर आप लोगों को समझ में आती है, ये एक बहुत ही टेक्निकल मैं आपको बताता हूँ. मान लेते हैं कि हमारा एक वो कनेक्ट लॉन्च हो जाता है. ओके, उस स्थिति में क्या करते हैं, जाहिर है हम लोग मीटिंग वगैरह करेंगे ही करेंगे, और मीटिंग करने के लिए हमें एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि हम जूम में भी लिंक क्रिएट करके हमारी टीम में शेयर करते हैं. ओके,
अब मान लेते मैंने ओ कनेक्ट का एक लिंक शेयर किया और मेरे पास लगभग मेरे मोबाइल में 2000 नंबर है, मैंने सबको वो लिंक सेंड कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि उसमें से 2000 लोग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आएंगे, हो सकता है 100 लोग ही उस मीटिंग को अटेंड करने आएंगे, बट जो 100 पीपुल उस मीटिंग को अटेंड करने आएंगे उसको सबसे पहले ओ कनेक्ट के अंदर उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ईमेल, नेम एंड मोबाइल नंबर। ओके, और जैसे ही वो लोग अकाउंट बनाएंगे 100 लोग, तो वो समझ लीजिए कि एक इन फ्यूचर लाइफ टाइम के लिए ऑन पैसिव के एक कस्टमर बन जाते हैं। और उस कस्टमर के तहत हमारी कंपनी ऑन पैसिव सबसे पहले उनको 7 डेज एक फ्री ट्रायल उनकी आईडी के ऊपर एक्टिव कर देगी, यानी जो हमारे कुछ फ्री वाले प्रोडक्ट है वो उनको दे दिए जाएंगे यूज करने के लिए। और 7 दिन तक वो जो 100 लोग हैं हमारी कंपनी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट आराम से यूज कर पाएंगे। और हो सकता है उसमें कुछ फ्री ट्रायल कई सारे बड़े प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। ओके, अब क्या होगा जब 7 दिन का टाइम पूरा हो जाता है या उससे पहले, जैसे मान लेते हैं कि पूजा जी एक लीडर है, इनको लिंक मिला है वो कनेक्ट का यूज करने के लिए मिला है, तो जाहिर है ये भी एक लिंक क्रिएट करके अपनी टीम में शेयर करेंगे। तो शेयर करेंगे तो ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने मान लेते हैं कि मतलब 2000 लोगों को सेंड किया, तो हो सकता है 1000 लोग इनकी मीटिंग में फिर से मतलब ज्वाइन करने के लिए आते हैं, तो फिर वही प्रोसेस चलेगी, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के उनको भी लॉगिन करना पड़ेगा। तब तक ये जो मैंने जो शेयर किया था लिंक, जिनका 7 डेज भी पूरा हो जाता, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारी कंपनी का एआई सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो उस कंडीशन में उन 100 लोगों को बार बार हमारी कंपनी की तरफ से मेल जाएगा, यानी कंपेनिंग स्टार्ट होगी और उनको ये बताया जाएगा कि भाई आपके नीचे इतनी टीम हो गई है, आपने हमारा ये प्रोडक्ट यूज किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये लीजिए, अन्यथा हमारे पास और भी प्रोडक्ट है बट कुछ भी लीजिए। और आप समझ सकते हो जब हमारी कंपनी की तरफ से सभी प्रोडक्ट उनको बारी बारी से मैसेज के द्वारा ऑफर किए जाएंगे, तो सभी को कुछ न कुछ इंटरनेट के ऊपर जरूरत रहती है। चाहे आप में से हम जो भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, ऐसा आज के टाइम में इस इंटरनेट जगत में कोई भी दावा ये नहीं कर सकता कि उसको इंटरनेट के बगैर काम चलता हो। कुछ न कुछ हम लोगों को चाहे इंटरनेट में, जैसे ज्यादा नहीं तो लोग सोशल मीडिया का तो यूज करते ही करते हैं, और ठीक वैसे ही हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि जिसका नाम है ओ नेट, बिल्कुल 100% फ्री रहने वाला है। और कई लोगों के एक इसके रिलेटेड भी सवाल आए थे कि क्या ओ नेट से हमारी इनकम होगी क्या। तो मैं आपको एक ज्यादा डिटेल में नहीं देके, हालांकि इसका सेशन रखेंगे हम, मतलब 100% कंप्लीट आपको बीच में मैं सेशन रखूंगा, बट आप ये समझ सकते हो कि फेसबुक का आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हो, जबकि हम सभी 1 रुपया भी नहीं देते हैं, फिर भी ये वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कंपनी है। ये कैसे बनी है? अगर आपने इनकी प्रोसेस को समझ लिया तो आपने 101% ऑन पैसिव को भी समझ लिया। तो ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया हूँ ओबीएस के बारे में, बट इसका मतलब पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि कमिंग डेज में 101% पूरा प्लान आपके बीच में, जितना हम समझते हैं, जितना हमारा नॉलेज है, आपके बीच में शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पूजा मैम। थैंक यू संपत जी। और एक और चीज इसमें हाईलाइट जरूर करूंगी, संपत जी परफेक्टली बोले थे, बिकॉज ओबीएस जब होती है सिस्टम, एंटायर सिस्टम कैसे वर्क होती है, तो ये एंटायर सिस्टम समझने के लिए हमें पहले सब सिस्टम स्टार्ट होना जरूरी है। ओके, प्रॉपर एग्जैक्ट फीचर्स जाने के लिए। सो आई गेस इवन मुकेश सागर जी कुछ इसमें हाईलाइट करना चाह रहा है, प्लीज मुकेश सागर जी। थैंक यू पूजा मैम। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ओबीएस जो ये क्वेश्चन आया है ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन,
इसमें क्या है कि मेरा हमारा एक डैशबोर्ड टाइप का रहेगा उसमें हमारा सारे, इसमें जो अभी जैसे जो हमें दिखाया था हमारे 4 प्रोडक्ट जो हमारे आ रहे हैं, ओनेट, ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम एंड ओ मेल, तो ये उसमें सब रिफ्लेक्ट होंगे उसमें, तो एक तरह का ये हमारा डैशबोर्ड टाइप का वर्क करेगा उसमें। अब उससे हम एक प्रोडक्ट से हम दूसरे प्रोडक्ट में कहे जाएंगे, उसमें ओ वॉलेट भी यूज रहेगा इसमें, तो ओबीएस वो है। अब बाकी का जब पूरा डिटेल आएगा तो वो तो जब सामने आएगा हम तभी बता पाएंगे इसमें। तो एक तरह की समझ डैशबोर्ड है जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट उसमें रहेंगे हमारे उसमें। मेन अभी फिलहाल के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है ऐसे के पास है और इतना ही बता सकते हैं इसके बारे में। और एक चीज और अभी एक चीज और जो अभी एक इससे पहले क्वेश्चन आया था किसी का, डेटा सेंटर इसके अमेजोन के और इसके डेटा सेंटर के बारे में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में। तो अभी एक बार आप लोगों को याद होगा, सब बहुत पहले बताया था सर ने कि हम ये बाकी जगह ये IPv4 यूज कर रहे हैं, हम इसमें IPv6 करेंगे। IPv4 क्या है, वो तो 32 बिट का एड्रेस ही ले सकता है, और ये जो हमारा ये जो हमारा IPv6 है ये 128 बिट हेक्साडेसिमल ले सकता है। इसमें मतलब हमारी जो उसमें जो आपका स्पेस रहेगा उसमें हम कितना और उसके मतलब कितना फास्टर रह सकता है। सपोज करो हम किसी के डेटा, हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी पेज को लॉगिन करते हैं या फेसबुक ओपन करते हैं, कहीं कुछ भी ओपन करते हैं, तो हम जब वो कुछ एंटर करते हैं कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कुछ एंटर करते हैं, तो वो हमारे एक डेटाबेस में जाके इसको जाता है, फिर वहां से उसका मैच करता है, तब फिर वापस आता है कि हाँ आपका मतलब ऑथेंटिक है आप इसको लॉगिन करने के लिए। तो ये सब का प्रोसेस होता है एक इसका कि टाइम कितना लग रहा है उसमें, तो वो स्पीड होता है इसमें, हमारा नेटवर्क कितना फास्ट है हमारा। तो उसमें जब हमारे पास स्पेस बहुत ज्यादा होगा, हम उसमें ज्यादा हमारे ज्यादा एड्रेस उसमें हम यूज कर सकते हैं। और जो इसके साथ हम इसमें अल्फा न्यूमेरिकल स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं 128 के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, कितना मतलब इनफाइनाइट तो चला जाएगा कॉम्बिनेशन, इतना कॉम्बिनेशन। तो ये है मेजर डिफरेंस इसका, जो उसका डिफरेंस है सॉरी डेटा सेंटर अमेजोन का हमारा डेटा सेंटर। थैंक यू। कंप्लीटली एग्री सर, थैंक यू सर और इसमें पॉइंट्स ऐड करने के लिए। मनोज सर, क्या आपके क्वेश्चन की आंसर आपको मिले है? मनोज श्रीवास्तव, आई गेस वो नहीं है। नेक्स्ट हमारे लाइक को होस्ट गायत्री मैम का हैंड रेज है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए मैम। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए पूजा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आज का वेबिनार के लिए। थैंक यू मैम। एस सर के साथ आपको बात करने का मौका मिला, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू मैम। और मेरा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ AI टेक्नोलॉजी के बारे में, डेफिनेटली जो मैं फील कर रही हूँ, अगर डेफिनेटली आपकी इजाजत है। डेफिनेटली मैम। तो AI टेक्नोलॉजी तो अभी हमारी जरूरत बन गई है। सुबह से उठ के मोबाइल हाथ में चाहिए ही चाहिए कि क्या अपडेट आया है क्या नहीं, सब कुछ हमको मोबाइल में देखना है। और मैं एक काउंसलर हूँ, जनरल काउंसलर हूँ, मैं जनरल काउंसलिंग करती हूँ और सभी को हेल्प करती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो मुझे तो सुबह मोबाइल चाहिए। और पिछले 6 महीनों से मैं ऑन पैसिव में आई हूँ, तो ऑन पैसिव की भी अपडेट लेती हूँ और सब कुछ मैं वेबिनार में भी जाती हूँ। और AI टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे को इतना कहना है कि आज AI टेक्नोलॉजी इतनी जरूरत बन गई है और इन फ्यूचर AI टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। सभी जगह AI टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। सब बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं, कोई भी है, उसको ये जरूरत बन गई है। अगर आज हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो इसमें से कुछ हमको मिलने वाला नहीं है, लेकिन फ्यूचर
फाइनेंशियल ऑन पैसिव के मोटिव क्या है, मुझे ओप को हेल्प करनी है। अभी मैं काउंसलिंग में हेल्प करती हूँ, तो मुझे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और मैं तो उसकी फैन हूँ और वन पैसिव की भी फैन हूँ। और आज संपत सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल ही आई मैं और आज मुझे उसने को होस्ट बना दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू मुझे थैंक ये यू। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं ज्यादा से ज्यादा अगली बार शेयरिंग रखूंगी। अभी तो टाइम कम है, किसी और को भी बोलना है नहीं और नहीं, बोल ऐसा सकते हैं। नहीं है, और ऐसा नहीं और गायत्री। नरसिम्हा राव सर का मैं धन्यवाद देती हूँ। आज डेटा सेंटर के बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। हम लोग हाउस वाइफ समझ सकती है डेटा सेंटर का क्या वो उपयोग है। हमारे घर में स्टोर रहता है खुद का, तो अगर हमारा खुद का स्टोर है तो हमको पता है कि स्टोर में क्या है क्या नहीं, सिक्योर है स्टोर। तो ऑन पैसिव में डेटा सेंटर है। मैं बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ जो सभी को समझ में आए कि डेटा सेंटर क्या है। हमारे घर में स्टोर है तो ऑन पैसिव में डेटा सेंटर है, तो समझ लो कि कितना सिक्योर है। हम कहाँ हैं आज। वेरी ट्रू है मैम, वेरी ट्रू है। बीइंग अ वुमन हम अच्छे से समझ सकते हैं इसके मामले, इस मैटर में। और रही बात आप शेयरिंग रखने का, हर दिन आप आते हो तो शेयरिंग रखेंगे तो हमारे लिए एक सपोर्ट होती है और हम भी उससे बहुत सारा नॉलेज सीखते हैं। देखो जब शेयर करते एक दूसरे से बात करते, हमारे नॉलेज इंक्रीज होते जाती है एक दूसरे से जब बात करते हैं। और संपत जी भी आपको कुछ बोलना चाह रहा है, प्लीज संपत जी। यस यस, थैंक यू गायत्री बहन। पहले तो मैं चाहूंगा कि सभी भारतवासियों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक पर्सनल सवाल है कि आप गुजरात में कौन से सिटी से हैं, बिलोंग करते हैं? और रवांडा में मतलब आपका मतलब आपका तो जॉब बता दिया आपने कि एक काउंसलर है, बट आपके हस्बैंड क्या करते हैं? थोड़ा आप अपने बारे में बताइए मैम। थैंक यू। भैया मैं सूरत गुजरात, सोनगढ़ मेरा बर्थ प्लेस है। और मैं शादी करके राजकोट आई हूँ, सौराष्ट्र राजकोट। और वहां से मैं रुवांडा आई, शादी करके बाद में मैं रुवांडा आई। और रुवांडा पिछले 30 सालों से हम लोग रुवांडा में हैं। बीच में 8-10 साल हम लोग इंडिया में भी थे, राजकोट में थे। मेरा ससुराल राजकोट है। और मेरे हस्बैंड, उसको ही देती हूँ, आप उससे बात कीजिए। यस यस, बात करवाइए। हेलो माय डियर जीजा जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार भैया। नमस्ते सर। देखिए, गायत्री बहन सूरत से बिलोंग करती है, तो इस हिसाब से आप हमारे जीजा जी हुए। नमस्कार। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। और कल गायत्री बहन आई, आज भी आई, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा आप अपना बारे में परिचय दें। थैंक यू। ओके, मेरा नाम योगेश जोशी है। एक्चुअली मैं भी राजकोट से हूँ और बर्थ प्लेस जो मेरा है ये रुवांडा ही है। रुवांडा में मेरा फादर जो है he came in Rwanda in 1946। तो हमारा भाई बहन जो है सभी का बर्थ यहाँ रुवांडा में हुआ है। उसके बाद एजुकेशन पूरा इंडिया में दिया हुआ है। इंडिया बाद में मैं वापस रुवांडा आ गया। सबसे पहले तो हमारा यहाँ बिजनेस था, बहुत सारा अच्छा बिजनेस था, लेकिन genocide war in Rwanda. Approximately 3 million people were killed. This is an official figure, unofficial is too much. तो तब से हमारा जो बिजनेस था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो then afterwards I started
अभी मैं जो बुरानी इंजीनियरिंग है उसमें एडमिन हूँ, HR हूँ। इन शॉर्ट, ऑल इन वन, आई एम हैंडलिंग द रवांडा ब्रांच। हमारा जो काम है ट्रांसमिशन लाइन का काम है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कंपनी का नाम है बुरानी इंजीनियरिंग, केनिया बेस है, और वहाँ से सब ऑपरेट कर रहे हैं। एंड वी आर हैविंग ए गुड टेंडर ऑफ व्हाट वी कॉल, यहाँ REG बोलते हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोलते हैं, GB, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। Just like that, we are having this REG here. So we are the contractor, and I am at present working there. Even I am a founder member, and always I am not getting much time to participate in all the webinars. But daily in the evening, I am always with my wife, and she is giving the updates. I am getting all the updates from her, and sometimes just like this Sunday or any other day, if I am getting the opportunity, I am joining this webinar also. I can understand your situation, sir. Same I have to do with my husband too. So I can understand. सर आप HR से हैं तो हमें खुशी हुई कि हमारे पूजा मैम भी HR को ही ज्यादा मतलब मैनेज करती है। 14 years of experience HR में है सर, अभी as a HR manager work कर रही हूँ। Great, good. और दूसरा सर, आपका मतलब जन्म रवांडा में होके भी आप अपनी मातृभाषा को नहीं भूले। ठीक है, गुजराती आप भूल गए मानता हूँ, बट फिर भी हिंदी अच्छी बोल लेते हैं। थैंक यू सर। हिंदी भी बोल लेते हैं, गुजराती बोल लेते हैं, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी बोल लेते हैं, स्वाहिली है। और वैसे मैं बता देता हूँ सर, रवांडा में जरूर मेरा आना रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी टीम है, तो कभी कभी फिजिकल इवेंट होगा तो जरूर आपसे मिलना होगा। You are always welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, Pooja ji. Thank you. Any Thank you, family member, Gayatri ji. Thank you. anyone who wants to come in Rwanda, they are always welcome. Thank you, sir. Thank you. It will be our pleasure. Once OnPassive launches, we'll be traveling across, we'll be meeting each other, everyone. Thank you. Everyone can. Thank you, sir. Thank you. Thank you to everyone. Now we'll. संपत भाई, आप गुजराती बहुत बढ़िया बोलते हैं मेरे हस्बैंड। क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। बोलते तो साहब बोली लो, नहीं મળે साहब। जी बोलो। मैं ये कहूँ છું કે તમને એવો મોકો બાર નહીં મળે, એટલે તમારા પાસે બોલવા માટે। સાચી વાત છે, this is a good media to get the knowledge. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए, और उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर हमारे इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। थैंक यू। यस पूजा जी। थैंक यू संपत जी। एक सेपरेट सेशन रखेंगे एक दिन पक्का, गायत्री जी और उनके हस्बैंड दोनों से हमें और शेयरिंग्स ले पाए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे मीरावली। थैंक यू मैम। मीरावली प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की ऑप्शन दिया है, प्लीज अनम्यूट हुआ मैडम। यस। पूजा मैडम, धन्यवाद बोल रहा है तुम्हारे के। यस। संपत पटेल साहब। यस सर। तुम्हारा फेसबुक का फ्रेंड है मैं। थैंक यू सर। हमारा आंध्रा से गुड पर्सन नरसिम्हा रेड्डी इज ए गुड मैन। कभी हमारे को अच्छा सजेशन दिएगा उन्हें, कभी हमारा अनफैसी का नहीं मालूम है पर्सन के भी अब मालूम करेगा। अच्छा आदमी है, इज ए गुड मैन, जेंटलमैन। नरसिम्हा रेड्डी हैदराबाद को होस्ट पर्सन। नरसिम्हा रेड्डी गारू। थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा मैडम, तुम्हारा का फेसबुक में फ्रेंड हुआ। हम सब एक ही फैमिली है, अनफैसी फैमिली। हमारा एक ही बॉस है, ऐश मोफार इज द गुड कंपनी, गुड जर्नी। और मैं हैप्पी अनफैसी में आएगा बाद में, अभी हैप्पी है मेरा फैमिली सब।
मैडम समझ आएगा तुम्हारे को? तेलुगु समझ आती है सर, तमिल भी समझ आती है, कन्नड़ा मेरा मदर टंग मेरा हिंदी है, मेरा हिंदी बोलता है। ओके ओके, है। हमारा अच्छा फैमिली, गुड फैमिली, अरे अनपासी फैमिली हमारा सबको। यस यस सर। सर मेरा वाली संपत सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वेबिनार में आए और आपने बताया था कि नरसिम्हा रेड्डी के बारे में। तो हाँ सर हो। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ आपको बोल देता हूँ, जो इनका ज्ञान है ना हाँ, वो तुम्हारा ऐसे ही कब नहीं भी मैं मिलता सर। फेसबुक देख रहा है संपत पटेल साहब, मैं कभी लाइक जी जी मारेगा, कमेंट करेगा तुम्हारा फेसबुक के। जी जी, बहुत तुम्हारा बहुत अच्छा धन्यवाद वर्कर है उसके लिए। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। जी थैंक यू सर। मैं हाँ ये ऐड करना चाहूंगा मेरे वाले सर कि जो नरसिम्हा रेड्डी सर है ना, उनको किसी की जरूरत नहीं है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपने नॉलेज को हमारे फाउंडर्स के बीच में शेयर कीजिए। तो मैं हो। धन्यवाद देता हूँ नरसिम्हा रेड्डी सर को। और अभी तो ये शुरुआत है सर, इनका अगर नॉलेज देखा जाए ना, बहुत ही जबरदस्त टेक्निकल पर्सन है सर। हो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय उन्हें यस यस कभी सॉफ्टवेयर को आएगा सब, उन सब चेक करेगा, हर एक कंपनी का बारे में क्या रहेगा, क्या होएगा सब। अरे सर हमारे बीच में इंतजार कर को, वेट कर को, इन्हें सब वर्क करेगा उन्हें। जी बिल्कुल मेरे वाले सर, हमारे बीच में एक मुकेश जी है और ये नरसिम्हा रेड्डी जी है, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और इनकी हमें आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, मैं बता देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपका पूजा कोई मैडम, क्वेश्चन तो रख सकते हैं सर। पूजा मैडम यस सर, धन्यवाद यस बोल सर, रहा है, तुम्हारे को वर्क करेगा अच्छे एज में तुम्हें। मेरा पास थैंक है यू। अनपैसिव फैमिली का मेंबर है। अब ओके, मैं ओके मैडम, थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नरसिम्हा रेड्डी को वीरावली भी गाరు। धन्यवाद बोलेगा। नरसिम्हा रेड्डी साहब तुम अच्छा बहुत आदमी है, बहुत अच्छा थैंक यू वर्क करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और एक आदमी को अवकाश दिया मेरे पास। थैंक यू सर। भूपेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे, प्लीज भूपेंद्र जी। जी मैम, मेरा वाली सर एक्चुअली एक कॉल आ गया था। तो मेरा वाली सर, మీరు తెలుగు నా హిందీ నా? నేను హిందీ తెలుగు రెండు మాట్లాడతానండి. తెలుగు హిందీ రెండు మాట్లాడతారా సార్? ఓకే మీరు సో తెలుగు ఇరవై ఇస్తున్నారుగా, లేకపోతే మిమ్మల్ని కూడా వదిలేవాడిని కాదు. సార్ నేను ఒక మాట చెప్తాను. యాక్చువల్లీ నేను 2-3 టైమ్స్ మిమ్మల్ని నోట్ చేశాను. మీరు ప్రాపర్ డెస్క్టాప్ లో రారు, కెమెరా ఆన్ చేస్తారు. సో ఈ వెబినారే కాదు సార్, మీరు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మీరు ఇప్పుడు ఒక ఆన్ ప్యాసివ్ ఫౌండర్ అయి ఉండి మీరు మిమ్మల్ని ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తారో అది మీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది సార్. సో మీరు కెమెరా ఆన్ చేయాలని ఏం రూల్ లేదు. మీరు ప్రాపర్ డ్రెస్అప్ లో లేకపోతే మీరు కెమెరా ఆఫ్ చేసుకోండి సార్. ఆఫ్ చేస్తున్నాం, ఈసారి నుంచి ఆఫ్ చేస్తాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ పూజ మ్యామ్। थैंक यू भूपेंद्र जी, बहुत अच्छे से आपने हाईलाइट किया। जरूरी है इसमें एक्चुअली एक मनोज श्रीवास्तव जी का एक क्वेश्चन मैंने भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। वो इनवॉइस के लिए पूछे थे, ब्लैंक इनवॉइस है तो ये जब आपको सपोर्ट में लिखना है उसको जनरल में जाएगा, बिकॉज बाकी सब जो है वो मेजोरिटी दूसरी टॉपिक्स के लिए है। सो आपका जनरल सपोर्ट में आपको लिखना है उसके सर मेल को। और एक बार प्लीज ध्यान रखिए, आपने आज एक मेल किया तो रिपीटेडली मेल अलग अलग मत कीजिए। आप एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज का टाइम दो और उसके बाद आपको मेल लिखना होगा तो रीटॉपअप सेम मेल करो, नया नया ईमेल मत कीजिए, बिकॉज हर नया मेल में आपका नया टिकट रेज होगा और नया डेट आएगा कि फ्रेश मेल है। और सेकंड चीज जो हाईलाइट करूंगी, इन केस आपके पास इनवॉइसेस ब्लैंक है तो सेकेंड ऑप्शन आपका ईमेल चेक कीजिए सर। ईमेल में भी आपको जब आपने पे किया है तो एक कॉपी ईमेल में भी आती है इनवॉइस का, सो आपका ईमेल में भी रहेगा तो हैज अ बैकअप आपके पास वो रहेगा। सो इधर नेक्स्ट हम पोपट भाई। मैम मनोज श्रीवास्तव जी ने वो मैसेज किया अनम्यूट करने के लिए प्लीज, और उसके बाद में हमारे बीच में पोपट भाई है, उन्होंने हैंड रेज किया था, तो उनको इनवाइट कीजिए। थैंक यू मनोज श्रीवास्तव जी, प्लीज आपका अनम्यूट की ऑप्शन दिया है सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए आप। नमस्कार एवरीवन। थैंक यू। यस मनोज श्रीवास्तव जी। हेलो यस मनोज श्रीवास्तव। मैंने 2 दिन पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अनम्यूट ब्लैंक वाला आ रहा है। हाँ। तो जो पहले मैंने इसका हैंड सपोर्ट में रेस किया था अपने, हाँ। लेकिन सेकंड टाइम में जैसे उसको हम लें उसी हाँ। को, हाँ। तो उसको किस रूप में लेंगे? उसमें तो सॉल्व करके दिखा दे रहा है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं है।
ओके, आपको सॉल्व का मेल आया लेकिन आप वो सॉल्व नहीं हुए हैं। नहीं, जी, जी, सो सर आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका केज को हिस्ट्री में जाके पूरा केज को डिलीट कर कीजिए। ऑन फाउंडर जी, ओ फाउंडर को फिर लॉग इन कीजिए नया नया जी, पेज में। इफ इन जी, केस आप अभी गूगल क्रोम में कर रहे हो तो दूसरा जी, ब्राउजर यूज कीजिए एक बार। ठीक है, जी, कभी कभी केज के वजह से या जो बैकअप सेटअप रहती है ना सर वो सेम रिपीट होती है। वो सिस्टम की जी, प्रॉब्लम रहती है या डिवाइस की प्रॉब्लम रहती है। सो उसके बाद भी आपको नहीं हो रही है तो आप उसी मेल में टॉपअप मेल कीजिए कि लाइक ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी ब्लैंक आ रहा है, और आप स्क्रीनशॉट उधर अटैच करके सेंड कीजिए सर। इसमें ना मैडम हमारे साथ में मतलब 4-5 लोगों का इकट्ठा एक साथ हुआ था, सबका एक साथ अपने सपोर्ट में रेस किया था और सभी के में एक ही आंसर आया है कि सॉल्व मतलब एक तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन किसी का सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, वो एक बार केज का जैसे मैंने बोले है ना सर, बिकॉज बहुत सारा क्या अपग्रेड हो रही है, सिस्टम भी अपग्रेड हो रही है। सो कभी कभी जी, क्या हमारे हमारे सिस्टम में डिवाइस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ऐसा हुआ है सर पहले भी। सो वो लोग जब दूसरा ब्राउजर में ओपन करके देखे या दूसरा सिस्टम में ओपन करके देखे, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल में ट्राई कर रहे हो तो एक बार लैपटॉप में करके देखिए। इफ आप लैपटॉप में ट्राई कर रहे हो तो एक बार मोबाइल में या दूसरे ब्राउजर में करके देखिए इसमें। नहीं इसमें ना जो दूसरा जो मेरे साथ साथी हमारे साथी हैं, उनके पास मतलब लैपटॉप और मोबाइल दोनों में यूज करके देख लिया, दोनों में ब्लैंक आ रहा है और सॉल्यूशन सॉल्व दिखा रहा है। और सेम पेज होगा सर, ब्राउजर दोनों में सेम किए होंगे। अब ये तो उसको हाँ एक बार इसको गूगल, टच कर लेंगे कल हाँ इसको, एक फॉर कल इसको एग्जांपल अभी, टच कर लेंगे एक बार। हाँ हाँ, एक बार गूगल कल टच क्रोम में करो। किया है तो कुछ और एप्लीकेशंस जैसे कि जी, जी, हाँ सब इंटरनेट आती है, समझ कोई गए। भी एप्लीकेशन दूसरे जी, एप्लीकेशन में सर। एक बार ट्राई कीजिए, जी, ब्राउजर जी, में जी। कोई भी। इन केस नहीं चेंज हो करें रही है ना सर, कल देख हाँ लेंगे उसको चेंज। यस, इन केस नहीं हो थैंक रही है यू। तो वही मेल में आपको जो मेल आई है ना उसी मेल में आप टॉपअप कीजिए कि हमें इसका ये लाइक आपसे मेल आया है लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ है। जी, नहीं वो सब दूसरे सिस्टम में कल चेक करके देखेंगे फिर। ओके, थैंक यू। यस, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। पोपट सर प्लीज अनम्यूट। यस सर, नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्ते संपक सर। नमस्कार सर, पोपट भाई को नमस्कार। बोलिए बोलिए सर। सर हमारे बीच में एक दीपेन भाई है, उसको थोड़ा सा शेयरिंग करने का मौका मिले तो। डेफिनेटली सर। दीपेन भाई, हाँ दीपेन भाई तोरणिया। सर उनको हैंड रेज करने बोलोगे बिकॉज नाम मेरे को मिल नहीं रही है। दीपेन तोरणिया लिखा हुआ है, दीपिन तोरणिया। विपिन, अच्छा मैं जितिन देख रही हूँ, सो सॉरी। दीपिन। मैंने आइए उनको दीपिन भाई। अनम्यूट कर दिया। ओके मैम हेलो प्लीज टाइम का ध्यान दें, टाइम 11:30 बजने को आ गया है। यस, यस सर। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सभी पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं दीपेन तोरणिया जूनागढ़ गुजरात से। नमस्ते। मैं सडनली अभी मैं जस्ट ऑन रोड था तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा इन्विटेशन है, उसके लिए सॉरी। ऑन पैसिव जर्नी के बारे में बात करूं तो मैडम मैंने जब भी ये अपॉर्चुनिटी मुझे रात को 1 बजे मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं बिलोंग करता था तो हाँ थोड़ा बहुत उसके रिगार्डिंग में थोड़ा नेगेटिव था। मैंने मेरे फ्रेंड को यही बोला कि इसमें मैं कोई प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाऊंगा, किसी को कन्विंस नहीं करूंगा। तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार देख लो, आप आईटी पर्सन हो। तभी मैंने उस वेबसाइट पूरी रात मैंने पूरा onpassive.com को स्टडी किया और तभी एक ही बात समझ में आई कि ये फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसमें जो भी ये पर्सन ने बोला है वो सही बोला है। और सुबह मैंने खुद सामने से कॉल किया कि मुझे ये करना है, लेकिन तब भी मैंने उसको यही बोला था कि मैं किसी को
कन्विंस नहीं करूंगा। बाद में मैंने पूरा स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ये डिसीजन लिया कि इसमें कन्विंस करने का कुछ है नहीं, सबको रियलाइज करना है। ये रियलाइज करते करते थोड़ा थोड़ा बड़ा 3 या 1.5 साल के अंदर क्रिएट कर लिया है। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी ये ऑन पैसिव का टेक्नोलॉजी ला रहा है कॉम्बिनेशन, इससे सभी फाउंडर्स की लाइफ ऐसी यू टर्न लगने वाली है मैडम, कि अभी सभी लोग जो रेगुलर वेबिनार कर रहे हैं वो तो सभी को मालूम है फ्यूचर में क्या हो रहा है, लेकिन जो भी फाउंडर्स अभी है वो सब अभी भी इस कॉन्सेप्ट को कैजुअली ले रहे हैं और उसको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। जब भी ये ब्लास्ट होगा तब उसको रियलाइज होगा कि ये पर्सन ने जो भी हमको बोला था आज वो सच हो रहा है। तो बस यही थोड़ा शेयरिंग था। थैंक यू वेरी मच मैडम, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया है। संपत जी इसमें कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हो? यस संपत जी। यस यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। और थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपेन भाई, आपने ज्वाइन किया सर। और बहुत ही जबरदस्त एक बात बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। आपको ये जो एनर्जी आई है या ये पॉजिटिवनेस आई है वो सब आपने स्टडी किया, सेल्फ स्टडी किया, किसी के भरोसे पे नहीं रहे। और हो सकता है आपने वेबिनार अटेंड किया है या नहीं किया, बट आपने ऑन पैसिव के बारे में अपना पूरा एफर्ट लगाया और हर एक प्रोडक्ट के बारे में जाना। हो सकता है आपने कई सारी मतलब मीटिंग्स भी अटेंड किए होंगे, तब जाके आप मतलब एक 101% एक पॉजिटिवनेस के साथ, आपकी आवाज से हमें पता चलता है कि आप मतलब कितने पॉजिटिव है। तो हम सब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वेबिनार में सिर्फ आके मतलब बैठ के शेयरिंग देने से कुछ नहीं होगा, बट आप जब भी टाइम मिले, जैसा कि दीपेन सर ने बताया, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और आज भी ऐसा बोला है हमारे बीच में कि अभी बहुत कमिंग डेज में आपको इतना बड़ा देखने को मिलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू दीपेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संपत सर, ये एक बार बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारा जो विपुल रावत की टीम है गुजरात की, उसमें वीकली जो हम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं वो भी मैं इसमें प्लान और प्रेजेंटेशन पिछले 1 साल से दे रहा हूँ मैं। यस यस तो सर, बिल्कुल मेरी बात होती रहती है आपके बारे में सर, पोपट भाई बताते रहते हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता कि आपकी चर्चा नहीं होती हो, बिल्कुल होती है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ सर आप ऐसे ही हमारे बीच में आते रहेंगे और जब भी टाइम मिलेगा हम आपके भी सेशन में जरूर आएंगे। थैंक यू सर। और जैसा कि बताया आपने कि हम सब एक ही फैमिली है और एक ही मतलब एक ही टारगेट कह सकते हो या लक्ष्य कह सकते हो। थैंक यू। और टू पूजा मैम, थैंक यू। थैंक यू संपत सर। एक लास्ट क्वेश्चन आज का है जो हैंड रेज है, मंतोष मालकर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, आप ऑप्शन दिया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस थैंक यू मैडम। यस सर। सभी लोग को नमस्कार। नमस्ते सर, पूजा मैडम। और मीटिंग में तो मैं बहुत कम आता हूँ और अभी यूट्यूब चैनल में ही था, तो मेरा एक क्वेश्चन था छोटा सा मैडम कि हम लोग जो ट्रांसफर जो कर रहे हैं अभी पेंडिंग फाउंडर्स, तो उनको जो है याहू, एक मेरे कलीग्स है वो याहू में उनका ईमेल आईडी है, तो उनको मेल ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है मैडम। तो ये इसका सॉल्यूशन जो है मुझे मतलब ये मैंने सपोर्ट को भी लिखा था और सपोर्ट को वहां से मैसेज आया कि उनका अलग अगर मेल आईडी है, उनके पास एक ही मेल आईडी है और याहू का ही यूज करते हैं। ओके सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा पूजा जी। मैंने आज याहू की 2 ईमेल को ट्रांसफर किया है और टॉपअप भी किया है, और कल भी मैंने ठीक याहू की 3 आईडी को ट्रांसफर करके टॉपअप किया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, हो सकता है आपकी मेल चेक कर लीजिए, बट याहू बिल्कुल सपोर्ट करता है और मतलब ओटीपी भी आता है और रीसेट पासवर्ड करने पे पासवर्ड भी आता है, और हमने टॉपअप भी की है। मैं किसी के मतलब कहने से नहीं कह रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकल आज भी किया है और कल भी किया सर। सर मैं आपका बात एकदम एग्री करता हूँ, लेकिन आज मैं फिर ट्राई अभी फिर तुरंत करूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इनवैलिड आईडी बताता है वो ट्रांसफर करने से, इसलिए मतलब दैट्स व्हाई, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब ये तो सर मुझे
हाँ सर। इनवैलिड आईडी बता रहे तो प्लीज आप एक बार चेक कीजिए सर। जब आप ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट तो डाल करके नहीं डाल रहे हो सर, नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल रहा हूँ। फिजिकली सर टाइप मैं कर रहे हो। बताता हूँ, सुनिए हाँ सुनिए हाँ सुनिए। जी। आप प्ले स्टोर से ब्रेवो नाम का है ये ब्राउजर, वो डाउनलोड कर दीजिए जिसपे शेयर का निशान होता है, ब्रेवो नाम का। ओके, यस सर, यस आप सर। उसमें लॉगिन करके ट्रांसफर कीजिए, 100% आपकी हो जाएगी। ओके सर। ब्रेवो, ब्रेवो करके क्या है सर? ब्रेवो ब्रेवो। और फिर भी आपको पर्सनल में भूपेंद्र जी आपको नंबर सेंड कर रहे हैं, आप अगर आपसे हो जाती है तो बेस्ट है, फिर भी नहीं होती तो आप प्लीज मुझे डिटेल भेज देना, मैं आपके ट्रांसफर करके दे दूंगा। ओके सर। पक्का सर, पक्का पक्का। ओके, थैंक यू हाँ, सर। बाकी 100% ब्रेवो करके एक सॉफ्टवेयर आता है गूगल क्रोम की तरह, उसमें हो जाएगा सर। मेरे भी ऐसा कई बार हुआ, तो जब हम सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली हो जाता है। और कभी कभी मान लो आपकी आईडी मेरे मोबाइल में नहीं ओपन हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल में भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारा टेक्निकल मामला है। और इसको ये हमारे बीच में रेड्डी सर बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं। मैं चाहूंगा कि वो उसके बारे में थोड़ा रोशनी डाले। पूजा जी उनको इन्वाइट कीजिए। थैंक यू। यस सर प्लीज। सॉरी, उनको समझ में शायद नहीं आया होगा, तो पहले Narasimha sir, like this is one question, like technically we want help support. Like the question is that the person is trying to put a Yahoo ID and that is a valid email ID. It is not copy pasted. It is manually typed. But they are getting errors stating that it is invalid email ID. One. Okay, And Bhupender, you can take his number. Tomorrow morning we will work with him. ओके सर, आप आपका नंबर इधर चैट बॉक्स में डायरेक्टली भूपेंद्र सर या नरसिम्हा रेड्डी सर को दे दीजिए। वो आपको कनेक्ट करके वर्बली आपका शेयरिंग करके, बिकॉज ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है सर, इधर लाइव करके आपको दिखाना थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहेगा। सो आप एक चैट में भूपेंद्र श्रीनिवास जी आप उनके नंबर आपको डाले हैं। सो अच्छा, आप वो नंबर कॉपी कर लीजिए, उनको कांटेक्ट कीजिए, या आप वो आपको कांटेक्ट करके आपको पूरा फिजिकली करके बताएंगे सर, बिकॉज नरसिम्हा रेड्डी सर स्ट्रांग है टेक्निकली, सो आपको सॉल्यूशन वो बता देंगे सर। ठीक है मैडम, ठीक है। श्योर, डेफिनेटली। या सो ओके जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं? यस, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आईडी है जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें वो इनवैलिड बता रहा है, किसको इनवैलिड बता रहा है ये? जैसे मैं याहू मेल आईडी जो है उनके आईडी में नया मतलब ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो आपका जो नई आईडी ट्रांसफर कर रहे हैं वो याहू की है? वो याहू की है, हाँ। और पहले जो रजिस्टर्ड किया हुआ है वो जीमेल आईडी का है, तो वो मैं याहू में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो सर आप मतलब ये ऑन पैसिव है और नया बनना है सब कुछ, तो अगर ऐसा कुछ इशू आप वैसे तो कल चेक कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए। इधर आप ऑलरेडी फाउंडर हो, क्या सर? Yes madam, I am already founder. So you cannot change your email ID by your own. Firstly, I am not telling pending pending founder को आप जब ट्रांसफर कर रहे हो ये प्रॉब्लम आ रही है। Yes, yes, pending this problem is when transferring Narasimha Reddy sir, this problem is when transferring the pending founder. Yeah, actually I understood the problem here completely. So this is not the right time to talk here. It's already too late. Yes, we'll definitely tomorrow morning we'll close that issue at any cost. Yes. Okay, so आप नंबर नोट कीजिए सर, भूपेंद्र जी ऑलरेडी चैट में दीजिए। I noted madam, noted. Okay, thank you sir, thank you sir. Okay, now it is मुकेश सागर जी, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? और नहीं, मैं वही बोल रहा था कि जैसे कि वो अगर न्यू आईडी ट्रांसफर करना चाहते हैं, अगर इनकेस उसमें कोई ऐसा इशू आ रहा है तो नई आईडी उसमें क्रिएट कर लीजिए। उसमें अगर ऐसा ही कुछ है तो नया नेम नया, अगर ऑन पैसिव में उनको नई आईडी जाएगी तो ऑन पैसिव की आईडी हो जाएगी, आप न्यू आईडी क्रिएट कर लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही हो तो नरसिम्हा सर उसमें हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर देंगे उसको। भूपेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपके हैंड रेस थे भूपेंद्र जी। जी पूजा मैम, मैं उनको ऑलरेडी नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अभी यहाँ पर लेट हो रहा है, उन्होंने नोट किए हैं सर। तो आप कल मुझे कॉल सॉर्ट आउट कर दूंगा,
और रही बात अगर याहू से नहीं हो रहा तो सिर्फ 5 मिनट लगता है जीमेल आईडी क्रिएट करने में। नया जीमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए और ट्रांसफर कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है सर। एग्जैक्टली सिंपल सा आंसर है। यही मैं बोलना चाह That रहा is था the final option. That That is is the the final final case. That is the final option. Yeah, right. सर मैं बता देता हूँ, इतना करेंगे इससे अच्छा आप एक सॉफ्टवेयर ही मतलब डाउनलोड कर लीजिए। ब्रेवो मैंने बताया 100% उसमें हो जाएगी। ये मंटो सर का एड्रेस आया, इनको प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर ब्रावो जो है वो एक ब्राउजर है सर, वो तो सिर्फ एक ब्राउजर का काम करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बैकएंड में हमारी टीम काम कर रही, तो हमारी वेबसाइट थोड़ी वो है सर। सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कल ही की बात बता रहा हूँ। ऐसे कैसे मेरे पास एक याहू की मेल आई थी और वो नहीं हो रही थी, तो मैंने ब्राउज़र ऑलरेडी मेरे मोबाइल में 2-3 ब्राउजर में रखता हूँ, क्योंकि आपको पता हमारा डेली का काम पड़ता है, तो मैंने उसमें किया तो हो गया सर, इसलिए मैं Sampath ji, okay, that we understood completely. Tomorrow morning, what we will do, you, me, and that guy who is the facing issue, we three of us will connect and we'll see. Okay? Yes. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू एवरीवन। सो अभी ऑलरेडी आज का सेशन वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है, एंड आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हमें दिए हैं नरसिम्हा रेड्डी सर और भूपेंद्र जी ने, और उसको थोड़ा बहुत और ट्रांसलेट करके हाईलाइट श्रीनिवास जी भी किए हैं। टुडेज सेशन वाज रियली वेरी ऑसम। वी हैड 2 great presenters, Narasimha Reddy sir and Bhupendra Srinivas. Narasimha Reddy sir had explained completely in Telugu, and Bhupendra ji had explained in Hindi and Telugu, and same topic again Narasimha Reddy conveyed it in English. So if you missed from the start the points highlighted, this is running in 2 YouTube channels too. One is in Sampathji's YouTube channel, and one is in my YouTube channel. You can go to it, and you can also see the complete live that was taken. एंड किसी कोई भी इधर आज जो आए थे उनको कोई भी केस कुछ स्टार्टिंग से नहीं देखने मिले, तो दोनों का यूट्यूब में है ऑलरेडी, संपत जी का और मेरे यूट्यूब में लाइव चले थे, सो आप बैक एंड से जाके उसको देख सकते हो। एंड साइमल्टेनियसली लाइक आई थैंक Narasimha Reddy sir for taking a special time. That is your traveling time after office, and today being Sunday, one day off, and dedicatedly you have given us time to explain. Thank you for that. And Bhupendra ji, thank you for what you do, like not only the webinar that you're conducting, but also from the back end you're supporting every one of us. आप सबको support करते हो, so thank you for both of you. Before winding up, if Narasimha Reddy sir or Bhupendra ji wants to have a 2 minutes word, anything. Sun is day power, moon is night power, unpassive is always power. Boom. It's fire time. Thank you. Bhupendra ji. जी मैम, तो कुछ नहीं करना है, बस हम ऑन पैसिव के लिए हाजिर है। हमारी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ पर 24/7 रहेंगे। आप मैसेज या कॉल से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, और बैक एंड सपोर्ट जैसे हमारी टीम है, मुकेश जी हैं, स्पेशली खुशबू मैम को मैं आज देख रहा था, उनके वो बच्चा रो भी रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चे को गोद में लेके पूरा हैंडल किया वेबिनार। सैल्यूट खुशबू मैम। एंड संपत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो भी करते हैं पता है हमें। तो थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय। Thank you, Bhupendra ji. Thank you, Srinivas Reddy, Narasimha Reddy sir, and thank you, Srinivas ji, for coming here and explaining. And thank you all the panel, because आप लोग बहुत पीछे से जब सपोर्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, हर एक चीज हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। तो सो थैंक यू फॉर एवरी पैनल मेंबर्स एंड स्पेशली पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज आप नहीं आते हो, हमें सपोर्ट नहीं करते हो, तो हमें एक मोटिवेशन नहीं मिलती है। सो इतना लेट होने के बावजूद, संडे होने के बावजूद हर दिन आप आते हो और बात करते हैं हमसे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड डेफिनेटली कल फिर से नया टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। बाय बाय। बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन, प्लीज अपने आप को सब लोग अनम्यूट कीजिए, एंड विल स्टॉप विद आवर स्लोगन।
We are in it to win it. To win it. So in it to win it. हम We are डर से Thank you, जीते Ash. We are in it to win it. Yes, करते very हैं good. to win it. We need to win it. Thank you everyone. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night.